This conference will now be recorded. So welcome on today's session where we are going to discuss charts. Charts at the beginning phase. Right? See, many people you would have met in your life who are already working on charts. Too many people have learned different things and there are different types of method. The way in which you have learned the chart is, I think it's totally different from the method with majority of the people which are using chart. I have seen that many people say that chart are for traders, right? That's the wrong thing. Chart are useful to all people. Charts are useful to wealth creator. Charts are useful for profit makers. Yes, and charts are made for trading. But we can't say that chart are only for trading, as many people say, right? We can identify, we can know fundamental looking on chart, and we can know the price behavior, that is charts, even looking at the fundamental. You know that 80% of the companies which you have already kept aside, you are not going to see. No need to see their chart, you know how would be their behavior. And on the other end, those top quality companies from growing industries, no need to see chart, from fundamental you can say what would be their behavior. In the same way, if you directly look on the chart, you will get the same signal. You will see that the companies which are performing, the price which is reflecting, the volatility which you can see very easily in chart, which is little bit difficult to identify the volatility when you are doing intrinsic value, right? But in charts it's easy, but that volatility you can predict in advance through fundamental. So see how fundamentals and technicals both are connected with each other. Today itself, you know that which company would be more volatile in coming 10, 15 years. Which companies you will be able to predict, and how you will not able to predict those 80% companies because they are not in our hand. So this was last week which you learned. You learned about support and resistance. Initially, while working on fundamentals, if you see, here is the same spreadsheet which you all have done. Wonderful work by you all. I should say, agree that you have already identified some of the growing industries where you need to focus. From these growing industries, you have already identified some top quality companies, right? This was also wonderful work by you all. Very, very good. Behavior. You try to watch their behavior, how these companies were behaving, right? This many companies, so many companies, past 20 years behavior, you try to understand so that you can predict the future, right? Last week, you worked on charts. You try to predict those companies through chart also. If I tell you any company, you should be able to just check their charts and reply that this would be debt free company, this would be debt burden company. Kaise? Volatility.
By looking on chart, you should be able to say this is from growing industry, this is not from growing industry. Kaise? The companies from growing industries would upgrade themselves every 3-4 years. You are going to see lifetime new highs. Why? Because growing industry है यार, धंधा बढ़ता ही आ रहा है, तो प्रॉफिट भी तो बढ़ेंगे. एकदम लॉजिकल चीज. सो चार्ट्स देख के फंडामेंटल बनाओ, फंडामेंटल देख के चार्ट बताओ, आखिर सब रास्ता तो जाना एक ही और है. राइट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन व्हाट वर्क यू हैव डन. I hope you have studied support resistance. I hope you have studied how some companies give breakout. Why those companies give breakout? What happens after breakout? क्या वो शेयर डबल हो जाता है तुरंत? So 100% upside is a normal upside. क्या ट्रेडर रिमोर्स आता है? क्या वापस थोड़ा बहुत करेक्शन आता है? These all things are the learning which we are supposed to learn. सपोर्ट रेजिस्टेंस से बाहर निकल के ब्रेकआउट देने के बाद मे बी ट्रेडर रिमोर्स कम, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम योर शेयर एंटर इनटू रेंज. कि ट्रेंड किसमें एंटर होता है? ट्रेंड. So now your share is going to show you lifetime high prices every 5-6 months or every 2-3 years. That's called as trending stock. After trending for 2 years, 3 years, again that share is going to come in your range bound mode. क्यों? कुछ तो होगा ना, मटेरियल के दाम कभी तो बढ़ेंगे, कभी तो कोई आके कहीं पे बोलेगा कि मैं इससे युद्ध करने वाला हूं, कभी तो किसी प्रॉब्लम आएंगे, तो योर स्टॉक्स आर अगेन गोइंग टू एंटर इनटू नॉर्मल है. 1.5-2 साल का करेक्शन मोड आना कोई भी शेयर के लिए नॉर्मल है. या देखने वाले हो तो प्रिपेयर रहो ना. हमेशा आपको 3-4 साल में मौका मिलेगा, 1-1.5 साल का करेक्शन पीरियड का. एक्टिव हो जाओ यार उस समय शेयर बाजार में एक्टिव. मान ले लो, देखो अभी 3 साल से बाजार करेक्शन मोड में है, फिर भी लोग पूछ रहे हैं पीयूष भाई लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. सही बताओ यार, करेक्शन मोड में नहीं लेंगे कब लेंगे? 18,000 पे लेंगे? 3 साल से नहीं चल रहा है बाजार, वी आर इन करेक्शन मोड. राइट ना? करेक्शन मोड आता है, बी एक्टिव. रैली आएगी, चले जाओ यहां से, बाजार से बाहर निकल जाओ, एंजॉय योर लाइफ. नौकरी धंधे पे पूरा ध्यान दो. वो समय ट्रेडरों का होता है. ट्रेडर्स को बढ़िया पैसे मिलते हैं. आज लिया कल बिक गया, परसों लिया और चल गया. ट्रेडर सोचता है यार शेयर कभी जिंदगी में बेचने का ही नहीं, कितने चल रहे, रोज वो मजे कर रहे. भूल जाते हैं 3-4 साल में वापस मोड आएगा, वापस करेक्शन मोड आएगा, और ये इतने बह जाते हैं कि हायर लेवल पे ही दुनिया भर के शेयर ले लेंगे, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस में आने में 3 साल लगते हैं. जब बाजार को वापस करेक्शन मोड में आना होता है तब वो लोगों को कॉन्फिडेंस आता है, नहीं यार सही बात है, ये शेयर अच्छा है, मेरे को लेना चाहिए. तो आप आए कॉन्फिडेंस में और अब बाजार आएगा करेक्शन मोड में. वो विक्रम बेताल वाली कहानी सुनी है ना, तो बोला और मैं उड़ा. तो तेरे को कॉन्फिडेंस आ गया क्या? गुड, अब मैं करेक्शन मोड में आ जाता हूं, बाजार भी अपनी वेट कर रहा है. बुरे फंसते उस समय ये ट्रेडर लोग. फिर कहानी आती है स्टॉप लॉस की, फिर कहानी आती है कोई शेयर से लव नहीं करने का. राइट? हम तो सब उल्टे दिमाग वाले हैं, फंडामेंटल में कोई स्टॉप लॉस ही नहीं होता है. यस, हम लोग तो लव करने वाले लोग हैं, शेयर से जरूर लव करते हैं, क्योंकि हमने उनके फंडामेंटल से लव किया है, हमने उनकी इंडस्ट्री से लव किया है. दोस्त, इंडस्ट्री चलेगी तो तुम्हारे शेयर को चलने से कोई रोक नहीं सकता है. आप कंपनी में गलत नहीं होने वाले हो क्योंकि आपने टॉप क्वालिटी वर्क किया है. ये जरूर हो सकता है कि कभी कोई इंडस्ट्री में डिमांड कम हो जाए तो आपका शेयर नहीं चलेगा, इट्स ऑल राइट. राइट? इसी प्रकार से कहानी चलती रहती है. शेयर करेक्शन मोड में आता है, वापस से 1.5-2 साल करेक्ट होने के बाद वापस किसको आना है? अगर आपने ग्रोइंग इंडस्ट्री में बने हुए हो, वापस किसको आना है? नई ट्रेंड. वापस 5-10 गुना शेयर हो जाते हैं, 3-1 साल चलते हैं,
लो कॉन्फिडेंस में आते हैं, फिर करेक्शन। ऐसा करते करते आपका शेयर अपग्रेड होता रहता है ना। जब 2008 का करेक्शन आया तब मेरे शेयर कुछ जोन में आ गए थे। 2014 में करेक्शन आया, पर वो 2008 के भाव पे नहीं आए थे, बिकॉज दोज वर इन ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। अभी करेक्शन आया तो भी वो 2014 के भाव पे नहीं आए। तो अभी अपन लेंगे, बढ़िया रैली आएगी, 2024 में वापस बाजार टूटने वाला है। पर तब अभी के जो लोअर जोन है ना, वो 2024 में नहीं आएंगे, है ना। समझ रहे हो। तो शेयर अपग्रेड्स इटसेल्फ ड्यूरिंग एवरी रैली। दैट इज द रीजन वी क्रिएट वेल्थ। बराबर है कि नहीं है। दैट इज द रीजन वी वांट टाइम। समय चाहिए। हर कोई व्यक्ति जिसे 10 साल में करोड़पति बनना है, मतलब 10 साल में वेल्थ करनी है, बननेगी ही नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। मिनिमम वी नीड 11 ईयर। 11 का वो अपना एक शुभ आंकड़ा बोलते हैं ना। 11 साल से कम में मजा नहीं आएगी यार, कंपाउंडिंग नहीं होगा आपका पैसा। सो एटलीस्ट वी नीड 11 ईयर टू सी। क्योंकि 11 साल में अब आप हिसाब करो, आप 4 बार मंदी देखने वाले हो, है ना, 1.5 साल की। एक आध बार तो जबरदस्त मंदी देखने वाले हो, और 6-7 जबरदस्त रैली देखने वाले हो। ऐसे आपके 11 साल होते हैं, तो 11 साल में कोई डाउट ही नहीं है शेयर आपके बढ़िया चल चुके होते हैं। राइट। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से मिनिमम 10। 10 से नीचे शेयर बाजार में नहीं आने का। राइट फ्रेंड्स। सो मैं चाहूंगा, हमने जितने भी अलग अलग कंपनियों में, जितने भी अलग अलग सेक्टर में काम किए हैं, मैं आप लोगों को प्रश्न पूछूं उससे पहले मैं चाहूंगा आप मुझे एक सेक्टर बताइए जो, मैं नहीं कहता इमर्जिंग में से हो, राइट, आप ग्रोइंग में से बताइए। कोई भी ग्रोइंग इमर्जिंग सेक्टर बताओगे तो अच्छा है। ग्रोइंग नहीं भी बताओगे, मान लो डिकेइंग सेक्टर बताया, तो भी उनके शेयर देखेंगे। राइट। एक उदाहरण मैं बताता हूं, फिर आप अपने शेयर पे बात करिएगा। चलिए, अगेन विंडो इज ओपन फॉर यू ऑल। आप कहोगे उन सेक्टर पे अपन बात करेंगे आज। यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स। क्या बात है, फर्स्ट फिंगर राकेश भाई की। चलिए एयरलाइन, चलिए एयरलाइन पे चर्चा करते हैं। एयरलाइन इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये तो हम सब लोग जानते ही है, राइट। तो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री पे जब हम बात कर रहे हैं, लेट मी ओपन द चार्ट। ये मैंने चार्ट ओपन कर दिए। चलिए, ये तो डॉलर का चार्ट है। डॉलर में भी दिख रहा है ना आपको, रैली आराम मोड, रैली आराम मोड, रैली आराम मोड। एयरलाइन की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी, आप ही लोगों ने बताया था। टॉप क्वालिटी में किसने काम किया है एयरलाइन में, जाने दो मेरे को। LINES, राजेश सामंत। यस राजेश भाई, यू वर्कड ऑन इंडिगो इन स्पाइस जेट। लेट मी ओपन योर स्प्रेडशीट। देखा कितनी काम लगती है भी आपकी स्प्रेडशीट। लेट मी चेक इंडिगो कैसा चलता है। ये है इंडिगो, और ये है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट अगर मैं इंडिगो के देखूं, एकदम सीधी बात है। एक तो नई कंपनी है, क्योंकि 5 साल का इसका हिसाब किताब है आपके पास। मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। इस लाइन को थोड़ी फुल साइज की करता हूं, मोटी, राइट। और एक यहां पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूं रेजिस्टेंस की। सी चार्ट इज क्लियर। इंडिगो इज द लीडर ऑफ दिस इंडस्ट्री। जब लीडर ही नहीं चल पा रहा है तो बाकी शेयर के क्या हाल होंगे, ये तो आपको पता ही होगा। इंडिगो इज मूविंग इन द लॉन्ग रेंज। अब हर साल इंडिगो के धंधे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। और इसी धंधे की वजह से इसने 2019 में ब्रेकआउट दिया था। कैन यू सी दिस ब्रेकआउट, राइट। लेट मी ऐड वॉल्यूम चार्ट हियर।
है ना, वॉल्यूम भी तो होना चाहिए। मैंने वॉल्यूम ऐड कर दिया नीचे। इंडिगो ने ब्रेकआउट दिया, शेयर चला, ट्रेडर रिमोर्स भी आया। ये ब्रेकआउट इस बेस पे था कि सेल्स ऑफ एयरलाइंस वर जूमिंग। भारत सब दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाली एयरलाइंस इंडस्ट्री दुनिया की सबसे ज्यादा फास्ट इंडिया में बढ़ रही थी, है इनफैक्ट। ट्रेडर रिमोर्स, हाई एक्सपेक्टेशन, प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ेंगे। और ये क्या आया अक्टूबर महीने में, बोलना नहीं कोरोना आया, कोरोना तो इधर आया था मार्च महीने में, ये कुछ आया। और फिर एक ही महीने में देखो ये बिहेवियर सीखने का हमेशा। ब्रेकआउट के बाद 1 2 3 4 5 6 महीने लगे इसे 1400 से 1900 जाने में, है ना। 5 महीने में 1400 से 1900, एक ही महीने में जा भाई वापस तू तेरी जगह पे, वापस ब्रेकआउट वाले लेवल पे, राइट। मतलब पैर वाले लोग इसमें ज्यादा हावी हो जाते हैं। कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा, कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, धंधा इतना बढ़ने के बावजूद भी। और इंडिगो वापस अपने पुराने सपोर्ट पे आ गया। जनरली आप देखोगे जो रेजिस्टेंस है, पुराना रेजिस्टेंस जल्दी ब्रेक नहीं करता है। यहाँ पे भी देखो टूटा पर कवर हो गया था और डोजी बनी थी, लेकिन दूसरी बार जब आया तब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक हो गया, शेयर नीचे चला गया। कोरोना के समय पे ये अपने पुराने सपोर्ट पे इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पे कौन बायर एक्टिव हुए होंगे पता है? वो पुराने बायर जिन्होंने इधर खरीदा था, जिन्होंने इधर खरीदा था, दे ऑल वर एक्टिव। चलो अपने भाव पे आया है, कम से कम इंडिगो धंधा जबरदस्त कर पा रहा है, प्रॉफिट इससे बुरे नहीं होंगे। और शेयर वापस रेजिस्टेंस पे आ गया। व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट, शेयर इसी प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस की दुनिया में और कुछ साल, कुछ समय चलना चाहिए। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हायर प्रॉफिट का, तब तक ये नया ब्रेकआउट नहीं देगा। अब ये तो है इंडिगो, जो लीडर होने के बावजूद रेंज बाउंड है। इंडिगो इज नॉट इन रेंज ट्रेड, राइट। दूसरी कंपनी इसी सेक्टर में है आपकी स्पाइस जेट। गुड कंपनी, अच्छी कंपनी है, राइट। लेकिन सेम इंडिगो, देखो इंडिगो का हिसाब आपने इधर से देखा था 2015 से, इधर से आधी कहानी थी इतनी। आप देख सकते हो स्पाइस जेट अपना पुराना सपोर्ट तोड़ के भी कोरोना में नीचे चला गया। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्यों चला गया? क्योंकि इन्वेस्टर्स को डर लगा। पुराने इन्वेस्टर भी बचा नहीं सके, उनको डर लगा कि इसके प्रॉफिट तो टूटने वाले हैं। तो ये 2015-16 का सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया है। कौन से सपोर्ट पे आ गया? कैन यू सी? सेम सपोर्ट ऑफ 2008, 2008 में यहां से जबरदस्त बाइंग आया था, 2014 में बाइंग आया था। एक चीज समझ जानी चाहिए, जब जब शेयर टूटता है पुराने लो पे आता है। सो दिस इज ऑल्सो अ शेयर विच इज मूविंग इन अ लॉन्ग रेंज ऑफ 14 to 115। हर बार 15 से 115, 115 से 15 की रेंज में चलता है। योर शेयर ट्राइड टू गिव ब्रेकआउट वन टाइम, फेक ब्रेकआउट, नहीं रहा, नहीं चला। दूसरी बार ब्रेकआउट देने का प्रयास किया, नहीं टिका, राइट। यानी एयरलाइन इंडस्ट्री में कोई प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है, ना इंडिगो ना स्पाइस, राइट। स्पाइस अच्छा कि इंडिगो कैसे तय कर सकते हो? फंडामेंटल भूल जाओ अभी। इंडिगो रेजिस्टेंस पे आ गया है, स्पाइस 2005 के लेवल पे चल रहा है, यानी स्पाइस इज अंडर परफॉर्मिंग इंडिगो। स्पाइस अगर 116 पे होता तो हम मानते इंडिगो जैसा है। देखा, चार्ट आपको हमेशा पूरी कहानी बता सकता है। स्पाइस इज अंडर परफॉर्मिंग इंडिगो, राइट। मैं और एक कंपनी बताता हूं आपको दोस्तों। ये वो कंपनी है जिसे हम 10 साल पहले भी मना करते थे कि मत लो मत लो मत लो, पर क्यों? जब इंडिगो तो नहीं था पर स्पाइस तो था, कम से कम स्पाइस इस शेयर से बेहतर दिख रहा है। ये जेड है, ये शेयर टूटा,
फिर आराम मोड, फिर वापस टूटा। राइट, यानी अच्छे शेयर अपग्रेड करते हैं, ये शेयर अपने आप को हर कुछ साल बाद डाउनग्रेड करता है। सीधी कहानी है, वी नीड टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ कंपनीज। तीन में से सबसे बढ़िया कौन? इंडिगो, दूसरे नंबर पे स्पाइस, तीसरे नंबर पे जेट। जेट लिया, दिस वाज वेल्थ डिस्ट्रॉयर। इंडिगो वेल्थ डिस्ट्रॉयर नहीं है, वेल्थ क्रिएटर भी नहीं है, बराबर। स्पाइस जेट एवरेज कंपनी है। देखा, एक ही सेक्टर की जब आप अलग अलग कंपनियों को पीयर ग्रुप में डालते हो तो कुछ इस प्रकार से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। किंगफिशर का चार्ट नहीं आता है क्योंकि बहुत समय पहले बंद हो गई, नो प्रॉब्लम। क्लियर है ये चीज? ऑलराइट। अब यही चीज मैं चाहूंगा आप लोग बिहेवियर समझाए मेरे को। एक लाइन यहां पे रखूंगा, एक लाइन में यहां पे रखूंगा। फॉल, आराम, फॉल। अभी आराम कर रहा है, अगेन क्या आना चाहिए? फॉल। अब तो आएगा ही नहीं, चलो है ही नहीं अभी तो, राइट। ओके राकेश जी, दोज कंपनीज आर नॉट लिस्टेड। एक चीज हम कह सकते हैं, अभी ये इमर्जिंग है, इसीलिए ऐसा है। इमर्जिंग क्यों है? बिकॉज अभी तो शुरुआत हुई है एयरलाइन इंडस्ट्री की इंडिया में, हम ये कह सकते हैं। लोगों की इनकम अब बढ़ रही है, इस बढ़ती इनकम को एयरलाइन इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। लेकिन लिस्टेड कंपनी बहुत नहीं है क्योंकि जो कुछ थी वो भी बेचारी मरी हुई है, राइट। पर जैसे जैसे ये इंप्रूव होगा, जैसे जैसे कंपनीज विल बी कमिंग इन प्रॉफिट, you will see there will be several companies from airline also which would be listed। अब आने वाले 10 साल में और तो अपने आपको लिस्ट करेगी। लेकिन अभी तो इंडिगो में लोगों को डर लग रहा है, स्पाइस में डर लग रहा है। तो कोई ऐसी कंपनी अगर अपना आईपीओ लेके आती भी है तो उसको कोई भाव ही नहीं देगा, है ना। वो बेचारी फेल हो जाएगी अगर वो अपना लेके आएंगे तो। राइट सर, सो राइट नाउ it's a high risk industry to invest, yet if we want to invest, इंडिगो इज अ बेटर चॉइस क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर उसके पास है, राइट सर। बुरे माहौल में भी इंडिगो ने लॉस कभी नहीं किया है। पिछले इतने सालों में इंडिगो वाज एटलीस्ट एबल टू मेक प्रॉफिट। इस साल बुरे हाल होंगे इसके, इस बार ये लोग लॉस करेंगे, राइट। नो नीड टू वरी, वी विल टॉक ऑन योर क्वेरीज ऑल्सो लेटर। नाउ आई विल चेक वन बाय वन योर चार्ट्स। मैंने मेरी जो टेस्ट की हुई थी उस पर बात नहीं की, हम जैद से चर्चा करेंगे। शेख जैद, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस गुड ब्रदर, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कैसे सर। हो आप? बढ़िया सर। फाइन, बढ़िया। जी सर। चलिए हम लोग बात करेंगे एयरलाइन इंडस्ट्री, तो चलो आपके पास थी, राइट। हम लोग आपके साथ चर्चा करते हैं कौन सी इंडस्ट्री पे? लाइफ अकेली नहीं चलेगी क्योंकि लाइफ में चार्ट ही नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस जी तो अभी आई है, तो आपको बहुत छोटा चार्ट मिलेगा, आपको क्लियरिटी हाई नहीं होगी। कोई जी सर। पुरानी इंडस्ट्री चाहिए जिससे हाई क्लियरिटी हो। हम एग्जैक्टली। लाइफ इंश्योरेंस भी देखेंगे और प्रेडिक्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो कंपनी की हिस्ट्री छोटी होगी उसे प्रेडिक्ट करने के लिए थोड़ी मास्टरी चाहिए, जो धीमे धीमे आएगी। जी सर। हम प्रयास करेंगे, राइट। एग्रोकेमिकल। हाँ नहीं, आपकी पसंद नहीं चलेगी, हम लोगों ओके की सर। सोचते हैं, है ना? जी तभी सर। थोड़ी चैलेंज रहेगा। ओके, चलिए, लेट मी थ्रो क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। विच इंडस्ट्री वी शुड गिव टू जैद? जो पहली इंडस्ट्री लिखोगे वही इंडस्ट्री का रिसर्च कराते हैं जैद से। देखे तो सही कि क्या आइडिया आई है जैद को, अभी सारी इंडस्ट्री में से टॉप क्वालिटी ढूंढ पाएंगे कि नहीं? यस यस प्लीज, एनीबॉडी। HDFC सर। नहीं, कंपनी नहीं कह रहा, सेक्टर। हाउसिंग फाइनेंस। चलिए, अरुण कुमार जी ने कंज्यूमर इलेक्ट्रिक लिख दिया है, तो लेट अस बिगिन विद कंज्यूमर इलेक्ट्रिक, राइट।
जी सर। सर, आपने कंज्यूमर इलेक्ट्रिक पे कुछ भी काम किया हुआ है? पता है आपको कंज्यूमर इलेक्ट्रिक में क्या है, कैसा है? सर कंज्यूमर इलेक्ट्रिक इट्स हैवेल्स। नहीं नहीं, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक हेवल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में नहीं आएगा। हेवल आएगा इलेक्ट्रॉनिक अदर यूटिलिटीज में, अदर यूटिलिटीज में कंज्यूमर अदर इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में कौन आएगा? बताओ किसकी प्रोडक्ट यूज करते हो आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की? कंज्यूमर एसी किसका है आपके इलेक्ट्रॉनिक पास? कौन सी कंपनी का वोल्टास एसी है? ओके सर। अच्छा है याद आ गया, याद आ गया। चलो हम क्या वोल्टास। करते हैं, हम इधर चलते हैं, बिहेवियर नहीं, हम टॉप क्वालिटी पे चलते हैं और इसमें देखते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में कब और किसने काम किया था। लेट मी चेक। ओके, नरेश भाई ने काम किया था। लेट मी ओपन इट। चलिए, एक आधी घटिया कंपनी, एक आधी अच्छी कंपनी, हम सारी कंपनी का रिसर्च करेंगे। मेरे को ये बताओ, ये इंडस्ट्री ग्रोइंग है कि नहीं है? ये इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है ओके, एंड तो इसके राइट, में से अच्छी कंपनी में से कौन सी कंपनी लेंगे? सर वोल्टास या फिर ओके डिक्सन। ओके, चलिए हम डिक्सन का चार्ट छोटा है, हम जी डिक्सन वोल्टास। भी लेंगे, पहले वोल्टास ले लेते हैं। ये मैंने वोल्टास का चार्ट ओपन किया, आप मुझे समझा सकते हो वोल्टास का बिहेवियर? सर अभी वोल्टास अपने टॉप सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। अगर हम प्रीवियस बिहेवियर की बात करें तो हाँ प्रीवियसली वो एक रेंज बाउंड पे था स्टार्टिंग, दैट इज लाइक 99 से लेकर 2005 तक, 2000 इवन 2006 तक। ये वो समय आ गया जो आपने बताया। लाइन कर दूं जी यहाँ पे? जी सर, यहाँ पे एक रेंज वोल्टेज बाउंड 15 जी ओके, डाउन, ये एक तो ये तो रेंज सबसे बाउंड बड़ी था। कंपनी थी वोल्टास। 10 साल तक शेयर जी चला ही नहीं, 2 रुपए से 15 रुपया। है बिकॉज ना? उस समय इंडिया का अर्निंग फिर इतना अच्छा नहीं था कि हर आदमी उसको अफोर्ड कर सके। राइट, करेक्ट। फिर क्या हुआ, धंधा बढ़ने लगा। फिर उसके और ये प्रॉफिट क्या है? बढ़े और उसने हम्म, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है 2005 के एंड में। ओके, ओके, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। जब इसने ब्रेकआउट दिया। देखो यहाँ पे भी जबरदस्त, ये उनका जिंदगी की सबसे बड़ी कैंडल है, दिख रही है आपको? जी 1 सर। अगस्त 2005। अब ये क्या घटना होगी, ये देखनी पड़ेगी, क्यों ये महीने में इतना कॉन्फिडेंस आया और ये माल कौन ले गया, है ना? ये आपको कहां से पता चलेगा वो भी आपको पता है। तो जी फिर क्या हुआ, रैली का अंत कब सर, हुआ? इस इधर। रैली का अंत हुआ यहाँ। जी सर, ये देन फिर एक रेंज बाउंड में आया। जब रैली का एंड हुआ ये फिर से एक न्यू रेंज अपने आप को अपग्रेड किया इसने, एंड तब ये ओके, 77 तो से लेकर 15 से 100। 115, है ना? 15 से जी 115 से कितना गुना हुआ था ये उस समय? ये तकरीबन 7-8 10 गुना हो गया। जी या बराबर है। फिर ये कितना समय जी, आराम मोड में रहा? ये फिर तकरीबन 2 साल आराम, एक राइट, 1.5 साल तो आराम मोड में रहा। वही तो कहानी मैंने आपको सुनाई अभी सुनाई जी ना मैंने कहानी, कि हर 3 साल बाद ऐसा समय आएगा, कभी ना कभी कोई रावण आएगा। ये वही सब तो समय, पर फिर क्या आएगा? फिर ब्रेकआउट। अगेन वो एक न्यू ब्रेकआउट देगा। हम्म, लेकिन ये क्या बट हुआ, ये ये तो जबरदस्त फॉल आया। जी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी लोगों को कि इसका ग्रोथ होगा अच्छा, बट उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उसको नहीं मिल पाया। दैट्स हम्म, वाई ये वापस से नीचे की तरफ आया और ये एक न्यू रेंज में अपने आप को कैरी करने लग गया, मतलब एक लॉन्ग रेंज। या ये रेंज कौन सी थी? 62 जी टू ये 60, 260। बराबर ना? जी अब कई लोग कहते हैं कि ब्रेकआउट पे लेने का, राइट? मैं जी भी यही मानता था पहले कि जब ब्रेकआउट देगा तब लेंगे, पर मैं ये भूल गया कि हमें तो पता है वोल्टा सबसे अच्छी कंपनी है इस सेक्टर की, तो हमें हर बार कहाँ लेना चाहिए? ये उसके जगह, सपोर्ट पे। सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट जल्दी नहीं आते। ये एक बार 60 पे लिया,
हम 260 पे थोड़ी ना लेंगे यार, बराबर की नहीं। जी। फिर क्या हुआ, इसने क्या Then दिया, उसने फिर a से एक new ब्रेकआउट breakout, दिया, that is in और ये ब्रेकआउट 2016। या ये अब तक का और कहानी पूरा आ गया, डन। जी सर। तो हम ये मानेंगे कि ये सैटेलाइट निकला था पृथ्वी से। सबसे जी ज्यादा तकलीफ सैटेलाइट को कब होती है, मतलब जब भी रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट लॉन्च होता है ना जब, तो सबसे ज्यादा फ्यूल ईंधन उसका कब खर्च होता है, जब वो अर्थ से बाहर निकल रहा होता है तब, फर्स्ट फेज में, शुरुआत के स्टेज, है ना। शुरुआत में। जी फिर एक बार वो अर्थ की ग्रेविटी से निकल गया, फिर तो वो घूमता ही रहेगा, फिर उसको फ्यूल जी सर। कंजप्शन नहीं होता है, बराबर की नहीं। फिर वो अपना प्रोडक्टिव काम करना चालू कर देता है जिसके लिए उसको भेजा गया है। सेम थिंग, शुरुआत में बहुत तकलीफ होती है, आपकी इमर्जिंग इंडस्ट्री है, लेकिन मार्जिन कम होते हैं इमर्जिंग इंडस्ट्री के, स्ट्रगल कर रही होती है, बहुत एडवर्टाइजमेंट में पैसा डाल रही होती है, लोगों को भरोसा नहीं होता है कि यार इंडिया में कौन ऐसी खरीदेगा, गरीब कंट्री है, तो स्ट्रगलिंग फेज होते हैं। पर एक बार ये रॉकेट निकल गया, फिर ये अपने आप को एक अलग रेंज में ले जाता है। फिर ये आपकी पुरानी पृथ्वी वाली रेंज में आया क्या, नहीं आया। कभी नहीं आया। कुछ समय आपका सैटेलाइट इस रेंज में घुमा, फिर ब्रेकआउट दिया, अब ये कौन सी रेंज में आ गया, ये रेंज में। कितना समय ये रेंज में घूमेगा, मिनिमम, मिनिमम 3 इयर्स। मैंने अभी बताया था कि 1.5 साल तो मान ही लेने का मिनिमम। जी कोई भी करेक्शन मोड लोगों को क्या होता है पता है, पीयूष भाई 5 दिन बाजार गिरा, माल उठा लेते हैं। अरे 5 दिन, 5 महीने कम है। जब भी शेयर एक बार अपना मंथली लो तोड़ेगा ना, राइट, करेक्शन मोड में एंटर होने का पहला इंडिकेटर होता है वो मंथली लो ब्रेक करता है, समझ जाने का कि 1.5 साल का करेक्शन आ सकता है। अब जब 1.5 साल तो मिनिमम है, कभी कभी 3 साल भी लगते हैं। अब ये कौन डिसाइड करेगा फिर कि करेक्शन 1.5 साल रहेगा कि 3 साल, बताओ। उसके प्रॉफिट। या सबसे पहले प्रॉफिट नहीं यार, प्रॉफिट से पहले क्या, प्रॉफिट किस पे डिपेंड है, उसके सेल्स पे, उसके डिमांड पे। सेल्स, और सेल्स से ज्यादा और किस पे डिपेंड करेगा, उस इंडस्ट्री की डिमांड कौन, है कि नहीं है। या मतलब जीडीपी आ गई वापस, जीडीपी है तो। जीडीपी। जी अब हम जीडीपी। जीडीपी देखेंगे टूटती जाएगी तो बेचारों का सेल्स कहां से बढ़ेगा, बराबर की नहीं। तो सब जी कहानी सर। अपने साथ है, ये आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कुछ लोग कहते हैं ना, मैं कहता हूं इधर से चलेगा ये, हाँ भाई जरूर आएगा, पर अपने हाथ में सही मायने में नहीं है। ये सब चीज है, सेल्स और प्रॉफिट और जीडीपी, बराबर की नहीं। कुछ लोग जी कहते हैं सर। ये पैटर्न बनी, अब ये इसको ये करना ही है, जरूरी नहीं है, सेल्स प्रॉफिट, राइट। तो हम ये मान के चलते हैं, लेट अस मेक चार्ट सिंप्लीफाइड। रैली आई, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, हमें किधर लेना चाहिए फिर, बता सकते हो, वोल्टास। इसको हमको थोड़ा सा वेट, सर अभी वोल्टास, अभी तो इसने अपना सपोर्ट को ब्रेकआउट किया है इसने, सॉरी सपोर्ट रेजिस्टेंस को, सॉरी इसने अपना रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अभी तो ब्रेकआउट अपने किया है। पुराने हाई पे आया है, तो हो सकता जी है 2-3 दिन में मैं बोलूं कि 10% प्रॉफिट बुक करो। मैं नहीं बोलता हूँ, स्टॉक अलर्ट देता हूँ जी सर। जी सर। कि 10% प्रॉफिट यहाँ पे बुक करो। मैंने पिछले महीने, आपको ध्यान होगा शायद, तो जब ये हाई लगाया था ना ये कैंडल ने, तभी मैंने बोला था जी पिछले महीने कि चलो थोड़ा 10% प्रॉफिट बुक कर लेते, अपन ने तो 500 पे लिया था, 500 पे लिया, जी आपने 500 शेयर लिए या 100 शेयर लिए, अब हम वेल्थ क्रिएशन के लिए ले रहे हैं। मैं इसको जिंदगी में कभी नहीं बेचने वाला हूँ, मैं वोल्टास खुद इकट्ठा कर रहा हूँ। पर अगर मैंने 100 लिए हैं, मैं यहाँ 20 में प्रॉफिट बुक करूंगा तो कुछ तो पैसा बाहर आए। ये फिर जी से सर। गिरे तो मेरे पास पैसे होंगे यार लेने के लिए जैन, है ना, नहीं तो फिर जी मैं सर। पैसे कहां से ले आऊंगा, नए पैसे। समझ जी रहे हो कहने की बात, जी हा? सर। तो जी हायर रेंज में कुछ प्रॉफिट बुक करो, कुछ कुछ, और लोअर रेंज में माल इकट्ठा करो। अभी जो ट्रेडर होते हैं ना, प्रॉफिट बुकिंग के बदले वो एक बहुत बढ़िया बड़ा उल्टा काम करते हैं।
वो लोग देखते हैं वोल्टास रेजिस्टेंस पे आया, चलो कल फ्यूचर ठोकते हैं। वो लोग 10-15 लॉट वोल्टास का फ्यूचर सेल कर देंगे, बराबर, क्योंकि वो इम्पेशेंट है, उनको तो आज ही कमाना है। और वोल्टास नीचे आएगा भी, मान लो 500 आएगा तो उनकी लॉटरी लगेगी। मजा आ गई कि नहीं उनको? उसी जी प्रकार से अगर उन्होंने यहाँ पे 10 फ्यूचर सेल किए होंगे, यहाँ पे वो 20 फ्यूचर और लेंगे, बोलेंगे 500 से तो इसको बाउंस होना है। तेरे को भी बोलता हूँ ले ले फ्यूचर, अपने दोस्तों को दिलाएंगे, ये वापस 700 आएगा, सबकी पार्टी होगी। फिर यहाँ पे वो लोग इस बार बड़ा खेल खेलेंगे। बड़ा खेल यानी चल दोस्त ज्यादा बढ़िया लॉट। कमा रहे, ऐसा रिस्क ले जो कभी नहीं लिया है। और यहाँ से देखो, जी याद रखो यार, कि आज नहीं तो कल इसे ब्रेकआउट देना ही है, क्योंकि वोल्टास की बिक्री बढ़ने वाली है, इंडिया में ऐसे बिकने ही वाले। तो ये लकीर नहीं है, लक्ष्मण रेखा नहीं है, ये तो टूटने ही वाली है। तो एक नहीं तो कल ये जो मंदोड़िया है, जो माल बेचता जा रहा है, वो कभी जबरदस्त फंसने ही वाला है। समझे मेरी बात? बिल्कुल। इसीलिए जी वो सर। सब माया जाल में नहीं पड़ने का, शॉर्ट टर्म बात। जी नीचे सर। के लेवल पे माल लो, ऊपर थोड़ा प्रॉफिट बुक करो, ये सब सिस्टम बराबर है। क्लियर है? जी सर। ओके, एक बढ़िया कंपनी और देखेंगे हम यही सेक्टर की। जी सर। ओके, समझाओ तो मुझे ये शेयर के बारे में कुछ। सर, चार्ट देखने से ये मालूम पड़ रहा है ये वोल्टास जितना तो अट्रैक्टिव नहीं है, बिकॉज इस वक्त जो वो चल रहा है वो अपने हायर को तोड़ के जब डाउनग्रेड हुआ है ये इस वक्त वापस से अपने हायर रेजिस्टेंस पे नहीं पहुंच पाया, जबकि वोल्टास अपने वापस से हायर रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। राइट, एब्सोल्युटली। ये शार्प की लेकिन टिप और बहुत चलती है सर। जी और देखो 10 पे लेने वाले फायदे में भी रहेंगे, वो 80 देखेंगे, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब ये ये 80 रेंज आएगा, बाउंड है। या ये रेंज बाउंड है, अगर ये 80 आएगा तो उस समय वोल्टास कितना होगा? उस समय वोल्टास नया हाई लगा रहा होगा। नया हाई मतलब 5 to 10 टाइम्स। जी 5-10 देखो लगा रहा होगा। 2008 में भी वोल्टास टूटा था, ये 10 रुपए से उस समय भी ये 80 पे आया। तो आपको मनी कंट्रोल पे मैसेज आएगा, एक शेयर है तो 8 गुना हो गया, तुमने लिया क्या? है कि नहीं? जी अपने को डिमोटिवेट करेंगे कि तुमने नहीं लिया। और जो लोग लेंगे वो फंसेंगे पूरा। अच्छे वो में फिर रहेंगे वापस से तो देखो वोल्टास भी यहाँ से बाउंस हुआ। बोलो बोलो जय। यस। जी वो फिर सर बेसिकली रेंज बाउंड में यही दिक्कत, मतलब जो लो कंपनीज होती हैं, जो जो अच्छा प्रॉफिट नहीं कर रही होती हैं, या उनके स्टॉक के प्राइस कम होते हैं तो वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं मैंने जो इसमें 100 शेयर या 1000 शेयर ले लिए। बट वो जब धोखा पाते हैं तो जाता भी फिर उसी तरह, जैसे अगर ये 80 से 40 भी आ गए तो 50% लॉस हुआ, मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए बराबर है। तो ये फंसाता भी उसी तरह से ही है और उससे ज्यादा फंसाता है। अगर हम इस चार्ट में भी देख लें तो इसने सिर्फ अगर देखा जाए तो 3 महीने की रैली देके फिर 4 महीने का करेक्शन दे देता है, और करेक्शन इतना भयानक देता है कि जो फंसा है टॉप पे वो फंसा ही रह जाता है। राइट राइट। अब ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इसने 2017 में, ठीक है फॉल्स। है जी ना? सर। पर ये फॉल्स रहा, पर ये ब्रेकआउट क्यों दिया था इसने? देखो वॉल्यूम भी जबरदस्त था, तो हम इसे फॉल्स ब्रेकआउट नहीं कह सकते। इन रियल टर्म अगर हम इतना देखते तो हमें क्या लगता पता है? अब शार्प एक नई जिंदगी जीने वाला है। वो था ना वो डायलॉग, जी चाहे जी ले जिंदगी जी दिल वाले दुल्हनिया, वैसे ही जी शार्प भी एक नई जिंदगी जीने वाला है, जा जी ले जिंदगी। लेकिन ये समय हमें ये सोचना है कि ये चलेगा तो वोल्टास किधर जाएगा? अच्छी कंपनियां तो जबरदस्त चलेगी, राइट? पर अगर फंसेंगे तो इसमें बुरे फंसेंगे, वोल्टास भी नीचे आएगा पर उसमें बुरे नहीं फंसेंगे, राइट? जी जी सर। ये डिफरेंस लोग नहीं समझते। अगर ट्रेडर है कोई, तो ट्रेडर को तो मैं बोलूंगा अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो वो लेंगे, इसको ब्रेकआउट पे लेने चाहिए, नो प्रॉब्लम। पर ट्रेडर को स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, राइट? जी
अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए है तो हमें तो पहली चीज ऐसी कंपनी सिलेक्ट ही नहीं करनी चाहिए, राइट। मिलिंद भाई से मैं बात करना चाहूंगा। जैद, एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी हमें यहाँ पे, अगर मिलिंद भाई ऑनलाइन होंगे तो। अभी मिलिंद भाई आप हो ना ऑनलाइन? यस मिलिंद भाई, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? ओके, मेरे ख्याल से ऑनलाइन है लेकिन बात नहीं सुन पा रहे। नो प्रॉब्लम, चलिए हम कुछ देर बाद चर्चा करेंगे क्योंकि इस चीज पे। हेलो। हाँ मिलिंद भाई आप हेलो हो ना? सर। चलिए बढ़िया, बहुत हाँ, अच्छा है। सर। हाँ, या नो प्रॉब्लम हाँ, मिलिंद भाई। बोलिए सर, सॉरी। एक क्या मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट चर्चा करना चाहूंगा, जो नए इन्वेस्टर को हाँ सर। ऐसी लर्निंग देगी ना जो कोई किताबों से उनको हाँ नहीं सर। पता चलेगी, राइट। और ये करेक्ट सर। नए निवेशक, ये लोग भी फंसने वाले हैं। हाँ, हाँ, कब फंसने वाले? तेजी में फंसने करेक्ट। वाले हैं, अभी तो फंसेगा नहीं, राइट। मैं याद करा दूं मिलिंद भाई, 2070 का वो हाँ सर। टाइम जब हम लोग दिल्ली में मिले हाँ थे, सर। राइट। वो करेक्ट यही सर। दौर था कि नहीं, जब हर सेक्टर की कंपनियां करेक्ट ब्रेकआउट दे रही थी। अब वो इस करेक्ट समय सर। क्यों करेक्ट ब्रेकआउट सर। दे रही थी? क्योंकि इंडिया एक कॉन्फिडेंस में था, इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा करेक्ट बढ़ सर। रहा था, और ये लगता था हाँ कि सर। इंडियंस की इनकम बढ़ रही है तो अब एसी की कंपनियां जबरदस्त चलेगी, टीवी की कंपनियां चलेगी, फ्रिज करेक्ट की सर। कंपनियां चलेगी। तो कोई डाउट ही नहीं, शायद को भी करेक्ट। चलना था। लेकिन ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ, मंदी आ गई दुनिया में और इंडिया में, राइट। तो उसकी इफेक्ट ये कंपनी पे भी आई मिलिंद भाई। ये यस सर। ब्रेकआउट का क्या हो गया? फालूदा हो गया, है ना, हाँ, एकदम यस नीचे सर। यस सर। डाउन। अब ये यस सर। समय आपको याद है हम लोगों ने ओरिएंटल होटल भी बाय किए थे, याद है ना? हाँ सर, मैंने भी बाय किया था सर। या अब हमें हाँ, क्या यस उम्मीद सर। थी कि होटल हाँ, इंडस्ट्री अब अच्छी चलेगी, इंडियंस की इनकम बढ़ रही है। करेक्ट सर। मंदी करेक्ट। आई तो ना होटल चली ना कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक चला, तो करेक्ट सर। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की भी कंपनियां नीचे आई, होटल भी नीचे आई। अब बराबर ऐसा सर। दूसरी बार कब हो सकता है मिलिंद भाई वापस? सर वापस अभी नया बूम जो आएगा ना, उसमें वापस यही होने वाला है। यस, जो ओके। नए मतलब ये छोटी कंपनियां है, इसलिए वो जो अपनी हम्म, एक्सरसाइज है ग्रोइंग इंडस्ट्री की वो वर्ल्ड की हाँ, बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर हम प्रॉपरली उसमें 20-25 ही जो टॉप सेक्टर है हम्म, उसमें और बेस्ट, राइट, मतलब शुरू में मुझे ये लगता था सर, बड़ा प्रॉब्लम मेरा यही था कि टॉप की क्वालिटी की हम्म, कंपनी क्यों है, अगर हम छोटी कंपनी ले तो वो 4 गुना हो जाती है। बट जैसे ही बराबर वो है, एक्सरसाइज है मार्केट कैप वाला आपका, हाँ, बेस्ट क्वालिटी कंपनी का, या सीधा सिर्फ हमने मार्केट कैप भी देख लिया कोई सेक्टर का जो ऑटोमेटिक हम गूगल से देखते हैं, उसमें 2-3 राइट, कंपनियां आ जाती है, तो वो भी हो गया तो इन्वेस्टर के राइट, लाखों रुपए बच जाते हैं। सही बात है। तो मिलिंद भाई देखो, 2014 में निफ्टी चला तो यस शार्प सर। भी चला, बराबर कि यस नहीं? सर। यस तो शार्प भी लोगों के सामने आई होगी। करेक्ट सर। 2017 में निफ्टी में करेक्शन आया और इसने ब्रेकआउट कब दिया? करेक्ट। 2017 में। 17 तो में जब आंधी बराबर आने सर। वाली होती है तभी ये सब हाँ, कंपनियां चलना चालू करती है। जब तेजी खत्म हुई तब ये कंपनियों को बराबर। चलने का याद आया। इसीलिए अब हम सब नहीं इन्वेस्टर जब से ये सर। बात करते हैं मिलिंद भाई कि यस सर। लीडर पहले चलता है, आखिर तक चलता है, करेक्ट ज्यादा सर। चलता है ना, और लेगर करेक्ट सर, एकदम सबसे सही। आखिर में चलता है। ये इसका एक लाइव एग्जांपल है ना मिलिंद भाई? करेक्ट सर। यस सर, मैं वही बोलना चाहूंगा कि जैसे ही मतलब कोई बुल रन खत्म होने वाला है ना, तो आपको टेल एंडर्स हाँ, न्यू लाइफ टाइम हाई लगाते दिखेंगे। राइट, बराबर है। उस समय हो सकता है हम नियम को बाजू में रख दे, अरे नहीं नहीं यार कर लो थोड़ा बहुत, बहती गंगा में हाथ धो दो, ये सब डायलॉग बोलते थे, याद है ना वो समय पे कि अरे कमा करेक्ट लेने करेक्ट का। सर। करेक्ट सर। मैं और ये सर मैंने भी वही किया था वो टाइम, बिफोर क्लास वो ब्रेकआउट ढूंढा था मैंने, और 22 साल के बाद राइट, ब्रेकआउट आया था सर ओरिएंटल होटल में, 22 ईयर्स के बाद। तो मुझे लगा कि ये टेक्निकली परफेक्ट है, और टेक्निकली परफेक्ट ही था वो, बट सब बाकी की भी बराबर है। चीजें जैसे आपने सिखाई वो इम्पोर्टेंट है हम्म, लेकिन। हम्म। तो अब ये गलती दूसरी बार तो अपने से नहीं होगी, बहुत बड़ा लेसन मिला, है ना। बहुत बड़ा तो लेसन सर, यही बहुत चीज बड़ा मैं बड़ा, इन लोगों से भी बहुत बड़ा, हाँ, और बहुत महंगा। हाँ, महंगा, सही बात है। लेकिन मजा आएगी, 10 ट्रिलियन तक तो हाँ अभी सर। बढ़िया नहीं कमाई करने की। डेफिनेटली ये जिंदगी भर के लिए सीखना सीखना हो गया है। ये बिफोर क्लास मैंने किया था सर,
अगर क्लास में मैं रहता था ना तो ये गलती नहीं होती थी मेरे से। हाँ। और चलो मेरा भी यही हाल था पहले, मैं भी खाली ब्रेकआउट देखता था तो मैं भी सुधरा, बराबर ना। तो इट्स गुड, लर्निंग सबके लिए अच्छा है। वो सर आपका जो वीडियो है ना ब्रेकआउट का, वो जबरदस्त है। अगर मतलब जो भी पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट हाँ करूंगा हाँ। कि यूट्यूब पे ना सर का ब्रेकआउट करके वीडियो है, वो आप जरूर देखिए। उसमें एक ऐसा 40 मिनट्स का है आपका, लेकिन जबरदस्त वीडियो है वो। आपने सभी ओके ओके, ब्रेकआउट्स वगैरह एकदम जबरदस्त समझा के दिए हैं, तो मतलब वो सीखने को बहुत है उसमें। बराबर बराबर, राइट राइट। चलिए, कई चीजें तो अनुभव से सीखेंगे मिलिंद भाई। आज तो यस सर, हम सब नए इन्वेस्टर के साथ बातचीत कर रहे हैं, पर कल यस तो सर। सब अपने को भी भूल जाएंगे। और बहुत सी किताबें आएगी इनके हाथों में, बहुत अभी तो ये लोग बहुत ट्रेनिंगों पे खर्चा करने वाले हैं अलग अलग जगह पे, बराबर हाँ ना। नहीं आप वही, कितना भी बोलो कि शेयर बाजार सीधा है, हमें तो कॉम्प्लिकेटेड ही अच्छा लगता है। नहीं वही है सर। मैंने अभी इतनी किताबें पढ़ी है ना, उसके बाद मेरे को एक ही समझा है कि जो आपकी वैल्यूएशन शीट है ना वो सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। और लेकिन वो सिंपल होता है ना सर, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। मतलब हमेशा हाँ ऐसा सही लगता है बात। कि कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ना तो हम कुछ मतलब तभी पैसा मिलेगा, लेकिन सिंपल चीजें ही पैसा दे पाएंगी। हाँ सही बात है, धीमे धीमे एक्सपीरियंस से सीखेंगे। जैद सुना ना यस सर। मिलिंद भाई का बात है, जी ये सर। ये ये अनुभव से सीखने को मिलता है, पर अनुभव लेने में अपने लाखों रुपए चले जाते हैं। इसीलिए जी मैंने सर। आपकी मिलिंद भाई से बात करवाई, क्योंकि नहीं इसीलिए ऐसी ये लोग, गलतियां। हाँ, हाँ सर, बोलो नहीं बोलो। ये लोग बहुत लकी है। इनके एक तो 10-10 साल बच रहे हैं और लाखों रुपए बच रहे हैं। मतलब इन्होंने अगर थोड़ा भी ध्यान दे दिया ना तो उनके, सच में मैं बोलता हूँ, मिनिमम 10 साल आपके बच गए एक क्लास की वजह से। और पैसे का तो मतलब गिनती ही नहीं है, आपका बहुत सारा पैसा बच गया। और बहुत बार क्या होता है, आप इनिशियल लॉस खा के निकल जाते हैं ना मार्केट में, 70% पब्लिक वापस भी नहीं आती। 2017 में जिन्होंने जबरदस्त फटका खाया ना, उसमें से मेरे पहचान के 10 लोग हैं कि जो वापस आए नहीं आज तक मार्केट में। वो तो उससे बड़ा हम्म, नुकसान और कुछ भी नहीं है। तो मतलब अगर हम ध्यान से सीखे ना, और कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कोर्स इटसेल्फ वेरी पावरफुल कोर्स है। आपने ये जी जान से किया। अभी मैं वापस से कितनी चौथी पांचवी बार है मेरा ये सर के साथ ऑनलाइन, जिधर भी होता है मैं सुनता हूँ, क्योंकि वही चीजें रिपीट होने से ना, सिंपल चीजें रिपीट होने से भी डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कोई भी किताब मत पढ़ो, कोई यूट्यूब चैनल मत देखो। आप इतना भी किया 4 महीने ईमानदारी से, फिर उसके बाद आप अपने आप कंपेयर करने लगोगे कि इसकी वैल्यू क्या है। बराबर है, और प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी, ये चार्ट में भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर कर लेनी रहे, थी, बराबर डेफिनेटली ना। सर, डेफिनेटली। यस सर। चलिए, धन्यवाद मिलिंद भाई आपका। और जैद, थैंक यू मैं सर। आशा रखता हूँ कि जब हमने कंपेयर किया तो आपकी कुछ आइडियाज क्लियर हुई होंगी। कम से कम जी सर। शार्क वेल्थ डिस्ट्रॉयर जेड नहीं बना रहा है, लाख के लाख है। ये इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री में से है। अगर ग्रोइंग जी इंडस्ट्री नहीं होती कंज्यूमर, तो इसने लाख के हजार कर दिए होते ऐसी कंपनियों ने, राइट। सो अवॉइड दिस टाइप ऑफ कंपनीज। डन। जी सर। ओके, राइट। मैं लाइफ की 2 कंपनी आपको बताता हूं, मुझे कह दीजिएगा कौन सी अच्छी कौन सी बुरी, फटाफट एकदम, है ना। चलिए, जी सर। एक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। अधूरा चार्ट, इतना चार्ट हमारे सामने है, जी ध्यान दीजिएगा। ये इस प्रकार से चल रहा है, राइट। हम इसे रेंज ही जी कहेंगे, सर। रेंज बाउंड तो है ही। अभी ये कहां पे है, जी सर। ये लेवल अभी ये अपने पे, राइट। सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। या ओके। अब इसको मैं ICICI प्रूडेंशियल से कंपेयर करता हूं, मुझे बताना उसमें और इसमें क्या फर्क है, क्या फर्क है बताओ इसमें और HDFC में। सर अगर हम इसको देखें तो ये अपने जो विसिली का सपोर्ट था, जो हम सेकंड हम्म सपोर्ट अगर मानते हैं इसको, तकरीबन 460 के अराउंड अगर हम वैसे देखें तो हम्म 460 राइट उससे भी नीचे जा चुका है। राइट तो अगर हम दोनों को, राइट। है तो दोनों ही रेंज बाउंड, हम्म बट जब इसको हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो HDFC लाइफ जो है वो अपने सपोर्ट पे अभी भी खड़ा हुआ है एट दिस राइट, प्रेजेंट टाइम, और ये अपने सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ चुका है। इट मीन्स अगर दोनों को बराबर, आपस में कंपेयर करते हैं तो HDFC लाइफ इज अ बेटर कंपनी देन करेक्ट, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। राइट। ये जो है ये रेंज में चल रहा है, बराबर ना। और HDFC जो है
उसने कम से कम 2 बार फेल्ड अटेम्प्ट किए ब्रेकआउट देने के, दिया ना यहाँ पे ब्रेकआउट, नहीं टिक पाया। जी और ये बार बार ब्रेकआउट देने का प्रयास कर रहा है, जबकि आईसीआईसी प्रू किधर चल रहा है, लोअर चैनल के नजदीक। अपने तो यहीं से समझ में आता है कि पहले जब भी कोई ब्रेकआउट देगा, पहले कौन देगा ब्रेकआउट? एचडीएफसी लाइफ पहले देगा। एचडीएफसी लाइफ, है ना? ओके, तो इसी प्रकार जी सर। से आप कंपेयर कर सकते हो। आपकी कोई भी कंपनियां हो, ये एसबीआई है, राइट, हमने देखा जी सर। एचडीएफसी इज बेटर वर्जन, राइट? Okay. ओके, But चलिए धन्यवाद। SBI is better than ICICI. यस 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 यस, तो इसी प्रकार से थोड़ा कंपेयर कर लीजिएगा। ओके, सो जी सर, लेट मी thank you मूव सर। टू नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। धन्यवाद शेख जैद आपका। और Thank you सर। yeah, let me ask question to Mr. Asim. Yes, Asim ji, are you online right now? Yeah. Hello, sir. Yes. How are you, Asim ji? Fine. I'm absolutely fine, sir. Thank you. Okay. So you have worked on this bank, small finance bank, right? And I have seen your chart. Yeah, Yeah. with this, some other companies also. Okay. Where are those companies? Other Sir, if you, sectors. yeah, Okay. आपने तो बहुत से सेक्टर में काम किया है ना? नहीं 6-7 Wonderful. में ही किया है। नहीं 6-7 में ही किया है अच्छा, बस। गुड गुड, बहुत अच्छा है। चलिए आपके आईटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की इंडस्ट्री हम देख लेते हैं। ओके, क्या समझाना चाहोगे असीम जी आईटी सॉफ्टवेयर की टाटा में? इसमें सर मेन ये है कि for a very long period of time it was in a range bound, and यस, then around somewhere around when it reached around 175, it moved to the a higher horizontal channel, I would say, at higher level. राइट राइट And in I think maybe in a less than a year's time, it again went up to another level as such, राइट and it crossed. I think it was roughly around 320 plus, and then again it moved in a year's time, crossed 600 plus. राइट, Yeah, ओके so here it stayed for I would say a few years, and then when it reached somewhere around 1140 in the second attempt, it crossed to the next level, ओके and then I think close to around 1490s, I think it met a resistance, and राइट, from there it, yeah, so then it for a few years it again went down to its you can say break its first support, then it went to the second या, support, and then it started moving up again, and it is ओके, currently at its previous resistance level at the highest level. राइट। So नाउ असीम भाई, many people yeah, tell me कि I am not able to buy good shares, क्योंकि good shares कभी हाथ में नहीं आते। They are always railing, they are always railing। पर ये बात गलत है। आप कोई भी शेयर देखो, इच एंड ये टाटा ईएलएक्सी जो एक जमाने में यहाँ 10-15 रुपए में ट्रेड करता था, वो भी 1500 पे है, यानी 100 गुना, राइट? 100 मल्टीबैगर इसको हम बोलेंगे, और हमने तो इसे हमारी आंखों के सामने ये 150 से 1500 होते हुए देखा है, राइट? हमारे पोर्टफोलियो में ही ये पूरी घटनाक्रम देखी है। पर पीपल से पीयूष भाई अच्छे शेयर हाथ में नहीं लगते, पर उन्हें वो देखते नहीं है कि हर शेयर करेक्शन मोड में आता है। क्या टाटा ईएलएक्सी कभी करेक्शन मोड में नहीं आया? ह्यूज करेक्शंस, है ना? देखो yeah, इनफैक्ट 3 साल से 5 साल से चला नहीं है। ये बात अगर कोई कहेगा कि अच्छे शेयर हाथ नहीं लगते तो गलत बात। इच एंड एवरी शेयर में ये दो खूबी होती है, वो रेंज बाउंड मोड में भी आता है, और रेंज बाउंड मोड के बाद व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ गुड शेयर? असीम जी, व्हाट विल कम आफ्टर दिस रेंज बाउंड?
After range bound, it will move to the another level. So I think, Again, yeah, correct, sir. Again, a new rally. Now, what is its behavior? During its past rally, you saw this share rallied from 176 to 1140. We can say it moved at approximately 5 times. Same thing we can expect here, right? Because behavior of this share is that whenever I will rally, I can rally around 5 times. है कि नहीं, sir? It's very yeah. simple to judge, right? Now, where we should buy during this type of correction, or when it will give breakout, that time we will buy. Uh, well, in the current state, I think I will wait for this stock to come to its support level 1, Okay, somewhere here, on. right? Yeah, that's right. Okay, okay, right. So that's good. See, always prepared to buy during this fall. But let me tell you one more thing. 1140 is a really wonderful time, but we should not forget that it has already given us huge, very long, last 5 year time to accumulate. तो ये कभी भी चल सकता है ना? 5 साल इसने हमें ऑलरेडी दे दिए, तो ये चलेगा, फिर ये कभी नहीं रुकेगा. कम से कम हम 2-3 साल की रैली एक्सपेक्ट करेंगे, राइट सर? रिजल्ट इसके कैसे आए हैं? लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट. सो आई That's right. एक्सपेक्ट ब्रेकआउट फ्रॉम दिस कंपनी. और अब की बार ये जो चलेगा, ये कम से कम 4-5 हजार चलना चाहिए. 600 पे भी जब ये आया, जस्ट कुछ महीने पहले हम लोगों ने लिया, हमारे पास तो पुराना शेयर भी पड़ा हुआ है, और हमारे बीच मेरे ख्याल से कुछ लोग हैं. लेट मी जस्ट चेक हियर. डैनी, डैनी ऑनलाइन हो क्या अभी? अनम्यूट कर सकते हो? अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो तुम्हारे पास ये शेयर शायद 5-10 साल से है. हाँ डैनी, आपने कब लिया था? हाँ पीयूष भैया, हाँ हाँ मैंने लिया था 300 के जल पे, 300 रुपए पे. ओके, हाँ उसकी फिर 300 एवरेज के करते बाद करते अभी तो डैनी 175 में आ गया. कितना? वो 175 में एवरेज में आ गया अभी, एवरेज करते करते. अच्छा, मतलब तेजी में आया तो थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, नीचे वापस लिया तो एवरेज आपका कम हो गया. ओके, तो अभी 300 वाला 175 का शेयर एवरेज आपका है. जब यहाँ दैनी 1500 आया तो डर नहीं लगा कि 5 गुना हो गया, नहीं लगा वापस क्योंकि 300 आ गया तो? नहीं हुआ था, 300 आ गया तो क्या करेंगे डैनी? नहीं हुआ, डर नहीं हुआ था और उठाने के प्लान चल रहा था. हैं ओके. अभी हमें भैया भरोसा क्यों होता है शेयर पे? क्योंकि फंडामेंटल पता है, बराबर ना डैनी? ओके, तो हाँ वंडरफुल पक्का. डैनी. इसी प्रकार से ये थैंक यू. एसआईपी का आपको बहुत लंबा मौका मिला, और आशा रखता हूँ अच्छी एसआईपी की होगी. वेरी गुड डैनी, राइट? थैंक यू. ओके ओके. तो असीम भाई, या जो डैनी से हमने बात किया है, डैनी इज इन आर्मी, और डैनी के लिए तो मैं वैसे भी जबरदस्त ताली बजाना चाहूंगा, क्योंकि ये वो बंदा है जिसने कैंसर को मात दिया है. और 1 साल पहले हम सब लोगों को चिंता थी, अरे यार डैनी को कैंसर हो गया, और आज देखो डैनी हमारे बीच आज की मीटिंग में है, राइट? क्या चैट बॉक्स में वंडरफुल लिख सकते हैं हम लोग? फॉर डैनी स्पेशल ह्यूज क्लैपिंग फॉर डैनी, ग्रेट, है ना? बढ़िया डैनी, बहुत खुशी है मेरे को कि आज हम सब लोग वापस थैंक यू बातचीत कर रहे भैया. हैं. या और इसी प्रकार से जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करनी है हम सबको. ओके, बैक टू टॉपिक. असीम जी, यू हैव डन अ Yes, sir. वंडरफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. आपने बढ़िया हर जगह पे लिखा हुआ है, लाइंस आपने बहुत अच्छी ड्रॉ की. इसी सेक्टर की मैं एक और कंपनी आपको बताना चाहूंगा जो बहुत हॉट है. जस्ट लेट मी चेक. आपने टाटा इलेक्सी देखी? ये नहीं देखी? ये तो लोगों की बहुत फेवरेट कंपनी है यही सेक्टर में. इसमें और उसमें क्या फर्क है? Sir, this looks like not a wealth creator, but more of a cyclical trading stock. Right, both are from same, almost same sector, both are in IT. Now see, अब ये भी तो चला था. आप बोलोगे पीयूष भाई ये भी जबरदस्त चला था. हाँ भाई चला था,
पर ये चला था, सब आईटी की कंपनियां चली थी। चलने से कोई मतलब नहीं है, ये चीज को डायरी में लिख देना असीम भाई। खराब खराब कंपनियां 10-10, 20-20 गुना होती है, तो खाली कोई कंपनी 5 गुना हुई, 10 गुना हुई, इससे हम उसके ऊपर स्टैंप मार दे कि अच्छी कंपनी है, तो गलत हो जाएगा हमारे साथ, क्योंकि ऐसी कंपनियां चलने से ज्यादा गिरती है। खाली चलना और टूटना कंपनी की क्वालिटी नहीं बताता है, हमें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखना है। तुम कितना भी चले होंगे, पर आज तो हमें नुकसान करा रहे हो। आज तुम्हारा भाव कितना है, 4 रुपया, और तुम्हारा आईपीओ आया था 1994 में 27 रुपए में। क्या करेंगे? फंडामेंटल देखना ही नहीं, क्योंकि फंडामेंटल देखोगे तो चार्ट भी नहीं देखोगे इसका, बराबर। लेकिन ये हॉट स्टॉक है असीम जी। जो भी लोग शेयर बाजार में पुराने खिलाड़ी, उनको पता होगा कि रोल्टा में वो लोग कितना टिप लिया करते थे। सो इट्स वेरी सिंपल, राइट। अब आप चार्ट देख के बता सकते हो असीम जी, कौन सी कंपनी अच्छी, कौन सी बुरी। एब्सोल्युटली सर, इसमें तो नो डाउट टाटा एलेक्सी इज द वन। तो तो चार्ट सिंपल है कि कॉम्प्लिकेटेड है? चार्ट तो आई थिंक गिव्स a quick representation कि whether the stock is making higher highs and higher lows, or it is making lower highs and lower lows, or range bound. So I think आपको एक नजर में ही पता चल जाता है कि 15-20 साल में स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। तो चार्ट देख के फंडामेंटल बता सकोगे, फंडामेंटल देख के चार्ट बता सकोगे, राइट। होप आइडिया इज क्लियर एंड होप यू विल Yes, डू प्रैक्टिस, क्योंकि अभी आपने चार्ट में बेसिक चीजें सीखी है। हम नेक्स्ट वीक और इसमें गहराई पे जाने वाले हैं, तो उस समय इसकी और बाइंग लेवल्स और ये सब आइडिया आएगा। पर ये प्रैक्टिस नहीं की होगी ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बेसिक है, ये अगर आपने पक्का सीख लिया ना, तो बाकी की चीजें आसान हो जाएगी, राइट सर? right sir. Okay, so thank you very much, Asim ji. Thank you. Yeah, thank you. Mayank bhai, yes, you can unmute yourself. Good Yeah. evening, sir. Good evening. बढ़िया हो एकदम? हाँ सर, एकदम फिट एंड फाइन। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो मयंक भाई से हम सवाल करें। मयंक भाई ने कई अलग अलग सेक्टर पे काम किया है। अगेन वी विल नॉट गिव चॉइस टू मयंक भाई, लेट अस थ्रो क्वेश्चन टू यू ऑल कि इसमें से कोई सेक्टर बताओ मयंक भाई, किस पे बात करेंगे? डिपार्टमेंट स्टोर, ऑयल एंड गैस, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में तो कोई है ही नहीं ज्यादा कंपनियां, राइट? कि कोई और सेक्टर? चलिए ऑयल एंड गैस, चलो ऑयल एंड गैस चेक करते हैं। इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस, लेट मी गो। मयंक भाई, मयंक Only भाई one नहीं है in this कहाँ पे? sector. सर ये कौन सा? सेक्टर में मैंने काम नहीं किया है, मतलब अभी ओके इस ओके, वीक, पर ऑयल एंड गैस में सिर्फ एक रिलायंस ही है जिसकी वजह से वहां पे ग्रोथ है, राइट। बाकी तो कुछ और कोई कंपनियां नहीं है, और बराबर? कोई नहीं है सर। राइट सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं 2-3 कंपनियां चार्ट पे डाल रहा हूं, मुझे समझाना ये कंपनियां कैसी है। हम प्रॉपर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लेते हैं, right? तो एक मेरे सामने है ये कंपनी बीपीसीएल। मुझे समझा सकते हो बीपीसीएल के बारे में कुछ, की आदतें कैसी है? सर बीपीसीएल बहुत लॉन्ग टर्म तक एक रेंज बाउंड में रहा है, या और शॉर्ट रैलीज के बाद में एक बिग रैली आई है सर, ये हम देख रहे हैं 2015 से लेके यहाँ पे 2019 तक में, बट अब एक लॉन्ग रेंज बाउंड में ये शेयर है करंटली,
और क्योंकि इनकी सब अर्निंग्स की ग्रोथ नहीं है, जिस वे में अर्निंग्स, अब अर्निंग की वो ग्रोथ नहीं है। 2015 से अगर वहां पे देखें तो एक ऑटो सेक्टर बूम था और ऑयल एंड गैस पे था, तो वहां पे ग्रोथ थी सर उस वक्त। तो उस वक्त के लिए वेल प्रॉफिटेबल शेयर होगा वहां पे, बट वो अभी तो ये सर रेंज बाउंड शेयर है। राइट, ओके। इसकी रेंज आप मुझे बता सकते हो, क्या रेंज में चल रहा है? सर अभी जैसे आपने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है 549 पे, और लोअर बाउंड रेंज पे हम 270 के करीब इस पे अजम्पशन कर सकते हैं। राइट, और ये मैंने जो ड्रॉ किया मयंक भाई, ये बहुत मुश्किल है कि सिंपल है, ड्रॉ करने जैसा है, कर सकते हो आप? सर मोस्ट इजीएस्ट थिंग है अब तक, ये चार्ट पे अगर ड्रॉ करना हो तो एकदम आसान। कितना हमें समझ मिलता है कि देखो आराम कर रहा है, फिर रैली आराम कर रहा है, रैली अभी भी आराम कर रहा है, तो हमें कौन से लेवल पे लेना चाहिए अगर लेना है तो? सर मैं तो बिलो 300 ही इसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि ग्रोथ मिसिंग है एंड डैप बर्डन है। तो ये दो चीजों की वजह से, एक तो कंपनी सेक्टर ही अवॉइड होता है, क्योंकि रिलायंस के पास दूसरे बिजनेस की वजह से प्रॉफिट है, इस पर्टिकुलर इसका बिजनेस है तो वहां नहीं है, तो सेक्टर अवॉइड होता है। बट अगर इस सेक्टर में फिर भी इन्वेस्ट करना है तो मतलब 300 के नीचे इसमें सर कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड। करेक्ट। अब देखो कोई अगर ग्रोइंग इंडस्ट्री हो, बहुत टैप फ्री कंपनी है, बढ़िया मार्जिन वाली कंपनी है, तो हम क्या करेंगे, 300 पे लेंगे, 550 पे 5-10% प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, है ना? तो लिए तो चलो 10 बेचा जाए ताकि कुछ पार्टी तो हो, है कि नहीं? थोड़ी खुशी भी तो मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ सर, बीपीसीएल ये वो सेक्टर है जो पुराना सेक्टर है, इसे हम ग्रोइंग सेक्टर नहीं कह सकते। तो ऐसे केस में जनरली मैं भी क्या लिखता हूँ, अगर आपने 300 पे बाय 25% प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं तो मैं जनरली कभी भी 25% यानी एक बड़ी रकम हुई, मैं बुक करने को नहीं कहता जल्दी। बीपीसीएल को अगर मैं लिखूंगा तो मैं कहूंगा ज्यादा बुक करो, क्योंकि अगर ये चल भी गया तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्त चलेगा, है ना? हाँ सर, राइट। तो ये अपने सेक्टर की 3-4 कंपनी ऐसी है ऑयल एंड गैस में जो पेट्रोल सेलिंग करती है, जैसे एचपीसीएल हो गई, बीपीसीएल हो गई, आईओसी हो गई, है ना? अगर हम बीपीसीएल को कंपेयर करें तो इसको बीपीसीएल से कंपेयर कर सकते हैं। मुझे समझाना, दो में से कौन सी ज्यादा अच्छी है? जस्ट अ मिनट, ये एचपीसीएल और बीपीसीएल, बताओ तो दो में से ज्यादा बेहतर कौन है? अगर आपको लेना ही है, सर पे बंदूक रखी है, बीपीसीएल के साथ लेना जाऊंगा, पड़ेगा। बीपीसीएल के साथ जाऊंगा, क्योंकि वहां पे एक स्टॉक अपग्रेडेशन दिख रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और मतलब एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में स्टॉक अपग्रेडेशन कर रहा है, टाइम ले रहा है पर वो अपग्रेड कर रहा है। तो आज नहीं तो कल वहां पे एक अपग्रेडेशन आ सकता है, पर यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं लग रही सर, क्योंकि ये एक एक करके अभी ये स्टेज नीचे आ रही है सर। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो तीसरा अभी रेंज ओपन हो चुका है इसका डाउन ट्रेंड में। बराबर है, राइट। तो एक चीज तो क्लियर है कि बीपीसीएल ऐसे करेक्ट हो रहा है, दिख रहा है ऐसे। हाँ, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डाउनवर्ड करेक्ट हो रहा है एक, मैं यहाँ पे बताता हूँ बीपीसीएल, ठहरो एक मिनट, प्रयास करता हूँ मैं यहाँ पे ड्रॉ करने का। बीपीसीएल ऐसे करेक्ट हो रहा था, दिख रहा है? हाँ सर, तो हम इसे सपोर्ट पे ले सकते हैं, और ये ऐसे करेक्ट हो रहा है, रैली के समय पूरा करेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये नया लो लगा रहा है। हाँ सर, तो लीडर ऐसे ही रहते और लेगर ऐसे रहते, डन? तो अगर लेना है तो हम कौन सा लेंगे? बीपीसीएल हमारी ज्यादा बढ़िया चॉइस होनी चाहिए, बराबर है? हाँ सर, दो में से मैंने बहुत से लोग देखे जो ये कहते हैं कि पीयूष भाई बीपीसीएल तो इतना ही टूटा है, ये तो इतना ही चलेगा, पर एचपीसीएल तो यहां तक जाएगा, तो अपने टारगेट नहीं बढ़ गए। उनको नहीं पता है कि जब तक ये यहाँ आएगा तब तक बीपीसीएल तो 4 गुना हो गया होगा, समझे कि नहीं? सर मैं भी उन्हीं लोगों में से था। हाँ। क्योंकि सर
आधा नॉलेज ज्यादा खतरनाक होता है। और बराबर। ट्रेडर, और हम ट्रेडर है कि इन्वेस्टर है पता ही हाँ, नहीं रहता हमको, सही पढ़ने के बाद बात है। समझ में आता है। राइट, अभी धीमे धीमे एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको क्या, हमें नहीं क्लियर था। राइट, मेरी लड़की मेरे को इसलिए बोलती है, पापा आपने कंपनी का नाम ही गलत रखा है, प्रॉफिट फ्रॉम इट क्यों रखा है, वेल्थ प्रॉफिट होना चाहिए। अब मैं उसको बोलता हूँ यार 15 साल पहले मेरे को भी ये समझ नहीं थी कि वेल्थ क्या है, मैं भी प्रॉफिट लेने के लिए शेयर बाजार में आया था, बराबर की नहीं। तो ये तो हाँ सर। धीमे धीमे सीखने को मिलता है, और यही चीजें से हमारा डायरेक्शन पूरा व्यू बदल जाता है। राइट, हाँ सर। तो एचपीसीएल बीपीसीएल आइडिया इज क्लियर। और एक कंपनी में आपको बता दूं, लास्ट वन, अगेन फ्रॉम ऑयल एंड गैस, सर ये एक्सप्लोरेशन। 90% बिजनेस इसी के पास है, इसकी इस सेक्टर में। बताओ मुझे, बीपीसीएल एचपीसीएल की ओएनजीसी क्या करेंगे? सर स्टिल बीपीसीएल। स्टिल बीपीसीएल। कितना सिंपल है यार, कोई हमने फंडामेंटल ही नहीं देखा, बैंक भाई देखा कुछ भी। नहीं सर। इसीलिए मैं पहले लोगों को चार्ट सिखाता था, और फिर तो कोई फंडामेंटल की क्लास में ही नहीं आते थे, बोलते थे अरे अरे ये तो सब आ गया अभी फंडामेंटल में, तो यार इतनी सीट बनानी है कि पागल हो जाते। नहीं सर, सीखना है, नहीं सर, वो जरूरी है क्योंकि मैंने ये सेक्टर सब पे वर्क जरूरी किया है, है। क्वालिटी में, तो मैं सेक्टर को समझ पा रहा था सर। राइट, पर वो मेहनत नहीं की होती तो यहाँ पे भी नहीं समझ में आएगा। पर चार्ट एकदम सिंपल होते हैं, है ना। जब भी कोई मुझे पूछता है मैं फटाफट चार्ट देख के ही बता देता हूँ, चार्ट देख के फंडामेंटल क्लियर हो गए। और एक आखिरी यही सेक्टर की कंपनी जिसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, जिसका एक समय 50% धंधा इस सेक्टर से आता था, आज उसका 25% धंधा टेक्नोलॉजी से आ रहा है, रिटेल से आ रहा है। तो बीपीसीएल, रिलायंस, एचपीसीएल, ओएनजीसी, समझाओ मुझे क्या अच्छा और क्या कैसा है। सर बीपीसीएल लॉन्ग टर्म रेंज में रेंज बाउंड है और स्टॉक अपग्रेड करेगा अपने आप को, बट जो बिजनेस है वो सिंगल यूनिसेक्युलर है। तो वही कंडीशन रिलायंस में भी देख सकते हैं। जब तक रिलायंस सिर्फ एक पेट्रोकेमिकल इस पे डिपेंडेंट था, तब तक देखते हम एक रेंज बाउंड में रह गया था। नियर अबाउट कितने इयर्स है सर, ये 5 to 6 years दिख रहे हैं आई थिंक, ऑलमोस्ट 10 years। 2007 to 2017, 10 years जैसा कुछ सर, नियर अबाउट रेंज बाउंड में था। 10 ईयर या हाँ, उसके बाद सर जैसे ही डाइवर्सिफिकेशन हुआ, तो जो इन्वेस्टर्स थे उन लोगों ने ये चीज देख ली थी। वी आर वेरी लेट, बट फिर भी अभी तो सर ये स्ट्रॉन्ग रैली में है, तो अभी तो वेट कर सकते हैं। और हम इसको नियर अब एक सपोर्ट जो है ट्रेडर रिमॉर्स जब आएगा यहाँ पे अपग्रेडेशन होने के बाद, तो 1700-1800 तक सर एक बार आ सकता है ये, वहां पे इसको एक्यूमुलेट करा सकता है। 1800 to 1600 सर एक राइट, ट्रेडर रिमॉर्स चालू हो गया सर इसमें। मैं यहाँ पे इसकी लाइन ड्रॉ करूंगा, बराबर ना। हाँ ये सर। लाइन, तो इसीलिए आपने नोट किया हो तो कोई मुझे पूछता है रिलायंस कब लूं, तो मैं उनको इसके आसपास का भाव बताता हूँ। और तो सर ये करंटली सोचेगा, करेक्शन मोड चालू हो गया है अभी। रैली मोड, कौन सा मोड कह रहे हो? सर ये ट्रेडर रिमॉर्स जो आपने पढ़ाया है, ट्रेडर रिमॉर्स, ट्रेडर रिमॉर्स की इनिशियल साइंस अभी दिख रही है इस मंथ में सर। नहीं, पर अभी कह नहीं सकते। हाँ, कंफर्मेशन नहीं, पर ये इंडिकेशन है कि हो सकता है यहाँ। राइट राइट, देखो मंथली लो ब्रेक करेगा तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो करेक्शन मोड में आएगा। लेकिन मैं एक चीज याद करा दूं, कोरोना का जो समय था, ये वाला महीना, तब हमारे स्टूडेंट्स ने एक एक्सरसाइज की थी, जिसमें मिलिंद भाई थे, सौरभ भाई थे, कई लोगों ने बहुत बढ़िया एक्सरसाइज की थी। उन्होंने ये एक्सरसाइज की थी कि कोरोना के बाद तुरंत कि कौन से शेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपना पिछले महीने का हाई कुदा दिया। दिख रहा है ये आपको यहाँ पे? हाँ सर। निफ्टी ने नहीं कुदाया था, पर इन्होंने ढूंढे कि चलो ये सेक्टर, ये शेयर ऐसे हैं जिन्होंने मंथली हाई कुदाया, यही चलेंगे। देखो इन्होंने यहीं से पकड़ लिए और फिर ये जबरदस्त चले, 1300 से तो डबल हो गया ऑलमोस्ट।
उस समय इन सर लोगों ने वो बायोकॉन निकाला था, डॉक्टर लाल पथ निकाला था, राइट। हर वो शेयर जो पहले चला वो आज सब लाइफ टाइम हाई है। कितना सिंपल एक्सरसाइज था जो ये लोगों ने किया था, है ना। हाँ सर वो एक्चुअली मैंने उस मीटिंग जो था मैं अटेंड किया था, तो अच्छा अच्छा अच्छा। ट्रेंड ऑफ द ट्रेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सर मैंने या वहां से जाना था, वही है सर ये। वेरी गुड, यस वही है बैंड ऑफ द ट्रेंड। मेरे को पता नहीं आज की मीटिंग में कौन कौन लोग हैं जो ये चार्ट ढूंढने में थे, पर उन्होंने कमाल का काम किया था। हो सकता है लोगों ने इनके वीडियो देखे हो सकता है लोगों ने लाइटली लिया हो, अरे यार ये तो हमारी तरह स्टूडेंट है, पता नहीं कौन से शेयर बता देंगे। पर उन्होंने एक एक जो शेयर बताया वो सब शेयर ये समय में डबल हुए हैं। एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो नहीं चला है। सो वंडरफुल, हैट्स ऑफ टू द स्टूडेंट। यस सर। सिंपल चीजें करने की, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं शेयर बाजार, बराबर ना। ओके, तो धन्यवाद मयंक भाई आपका भी, एंड परमिट थैंक मी यू टू सर। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टूडेंट। यस सर। ओके, हेलो यस यस। अशोक भाई बोलो सर। गुड इवनिंग सर। अरे बोलो अशोक भाई बोलो। सर मेरी एक क्वेरी है। कहिए। वो सर बीएससी की साइड से और हाँ बैलेंस शीट से मुझे वो हाँ। रिजर्व और डेब्ट कहाँ से मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है सर। रिजर्व का डेटा नहीं मिल रहा है। नहीं, कहाँ से मिलता है, नहीं मुझे कहाँ नहीं दिख रहा है। रिजर्व कहाँ से मिलेगा और डेब्ट जो आपने मुझे बताया था ना, हम्म। तो वो कहाँ से मिलता है मुझे कहीं कहीं नहीं मिला। तो सर अगर आप कुछ दिखा दे तो। अपोलो अभी हॉस्पिटल। मैंने अल्ट्राटेक का रिजल्ट अपडेट किया, जस्ट अभी, है ना। मैं ओके ऑफिस से निकला तो रिजल्ट अपडेट करके ही निकला था आज। ओके सर। ओके वही रिजल्ट मैं ओपन करता हूँ। सिक्स मंथ कह रहा था ना आपको पहले कि अभी हाँ 6 मंथ आएंगे, ये 6 मंथ इज इंपॉर्टेंट, ओके राइट। ओके, तो 6 मंथ ये पूरा उनका डेटा और ओके इंपॉर्टेंट डेटा। ये इक्विटी दिख रहा है, पेड अप इक्विटी या क्या। हाँ हाँ 288 करोड़ की इनकी इक्विटी है। और हाँ हाँ अदर इक्विटी दिख रही है आपको, यस ये अब तक की उनकी एक्यूमुलेटेड इक्विटी है। यानी ये ओके पैसा शेयर होल्डरों का पैसा है। ओके ये वो पैसा है जो अब तक के प्रॉफिट से इकट्ठा हुआ है। ओके 39,000 करोड़ का इनका रिजर्व है। ओके। तो ये अदर इक्विटी वो रिजर्व होती है। अदर इक्विटी यानी रिजर्व वो आपको यहीं से मिल जाएगा, बराबर। पर ओके ये सर। टोटल ओके इक्विटी नहीं हुई। टोटल ओके इक्विटी जो गिनते हैं उसमें ये दोनों को टोटल कर देते हैं, पेड अप इक्विटी और अदर इक्विटी दोनों का टोटल। डन। ओके तो एक चीज क्लियर हुई। अब ओके आते हैं यस डेप्थ के ऊपर। ओके डेप्थ क्या। ये है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का कॉलम। यस थोड़ा मैं और जूम करता हूं। जी सर। एसेट्स लायबिलिटी, पहले आई एसेट, ओके करंट एसेट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यस और ये है इक्विटी। यस सीधे आ जाओ इक्विटी में। हमने अभी यही इक्विटी देखी थी 288 करोड़, यस राइट। आपने यस पुरानी फिगर देखी थी अभी 38,000 हाँ करोड़ पिछले रिजल्ट के ओके हिसाब से उनका रिजर्व था। ओके लेकिन ओके प्रॉफिट पिछले साल का ऐड हुआ और अब कंपनी का रिजर्व कितना है, 40,000 करोड़। 40,000 ओके डन। ओके तो ये हुआ रिजर्व। अब आ जाओ लायबिलिटीज पे, डेप्ट पे। लायबिलिटी दिख रही है नीचे ही आपको। यस 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 लायबिलिटी में दो है, एक नॉन करंट और एक करंट। ओके करंट यानी नियर टर्म की, ओके नॉन करंट ही देखने की, करंट नहीं देखने की, अच्छा नॉन राइट। करंट भी देख। हाँ, नॉन करंट लायबिलिटीज देखने की। नॉन ओके करंट लायबिलिटीज में यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल लायबिलिटी में बोरोइंग, दिख रहा है आपको, हाँ हाँ बोरोइंग। यस यस तो यस यस बोरोइंग यानी हमने कितना पैसा उधार लिया है, तो कितना है, ओके 15,000, 15,000 16,000 करोड़। डन। ओके हाँ तो एक चीज क्लियर हो गई।
कि तो सिर्फ ये अल्ट्राटेक पे डेप्थ कितनी है? 16,000 15,000 16,000 या यस 16,000 करोड़। ओके बोरोइंग वही सिर्फ वही फिगर लिखने का हाँ वही फिगर लिखने का, यही वाला ओके और है सर ना। आपने जो मुझे दो चीज बताई थी डीई और डेप्थ वो दोनों में क्या डिफरेंस है किसमें किसमें? आपने जो मुझे कॉलम ऐड करवाई थी ना उसमें हाँ वो हाँ जो मैंने उसमें हाँ आपने हाँ एक लिखाई थी डीई करके और एक डेप्थ यस डेप्थ में आपने ओके फॉर्मूला लगाई थी डेप्थ डिवाइडेड बाय रिजर्व और जो डीई बराबर। लिखा है तो चलो यहीं पे मैं डाल देता हूँ, 1 मिनट मेरे को देखने दो किसने काम किया है सीमेंट पे। रंजन कुमार जी, अच्छा पर काम तो है नहीं है मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे सीमेंट का, है ना। नहीं सीमेंट पे काम नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो डीई यानी डेप्थ टू इक्विटी, मुझे डेप्थ बताओ तो कितनी है अल्ट्राटेक की? 15,000 करोड़, 16,000 15,000 करोड़। और 16,000 यस इक्विटी कितनी है? इक्विटी टोटल इक्विटी बस सर 40,000 या 600 40,700 करोड़, बराबर ना 700 दोनों का मिला या के। या 40,000 तो 15,000 ये 16,000 डिवाइड बाय 40,000, जो आंसर आएगा वो हुआ डेप्थ टू इक्विटी, 0.3 जितना कुछ हुआ। ओके वो डेप्थ टू डेप्थ इक्विटी होगी डिवाइड बाय इक्विटी कर लेने की डायरेक्ट, तो आपका डेप्थ टू इक्विटी आ जाएगा। डन, ओके क्लियर। उसको उसको क्या बोलते हैं डी डीई डेप्थ डेप्थ टू इक्विटी रेशियो। मतलब उसको डेप्थ से इक्विटी को डिवाइड करने का हाँ आप एकदम सिंपल है, लॉजिकल देखो कि कंपनी कल बंद हो गई, कंपनी का कल धंधा नहीं आया, तो कंपनी के सर पे डेप्ट कितनी है, क्या वो ओके अपनी टोटल इक्विटी में से क्या चुका सकेगी? तो कंपनी यस की रिजर्व में 40,000 करोड़ है, ये 15,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डेप्ट है अल्ट्राटेक पे, डेप्ट है लेकिन ऐसा नहीं है कि मर जाएंगे, बहुत बुरी डेप्ट नहीं है। कुछ कंपनियों की डेप्ट बहुत ज्यादा होती है, अगर उनकी इक्विटी 40,000 करोड़ होती है, उनपे डेप्ट भी 40,000 करोड़ होती है, उसे कहते हैं वन वाली डी, यानी जितनी डेप्ट उतनी इक्विटी, वो हाई रिस्क हुआ। ओके राइट ओके सर तो एक ओके। सर आपने मुझे 3 दिया था एक रिजर्व दिया था हाँ और एक डेप्ट दिया था डेप्ट टू रिजर्व डेप्ट हाँ डिवाइडेड बाय रिजर्व राइट डीईबीटी और एक हाँ डीई दिया था डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी सही है ना हाँ हाँ वो और ये एक है दिया डेप्ट था डिवाइड बाय आरओई इक्विटी, एक आरओई दिया रिटर्न ऑन रिजर्व इक्विटी। हाँ रिजर्व डिवाइडेड बाय इक्विटी ठीक है हाँ टोटल रिजर्व। ओके सर मैंने वो काम किया है अभी 3 सेक्टर में ही हुआ है जो मैंने ओके समराइज किया है अगर आप कहो तो मैं शेयर कर सकता हूँ अगर इसमें का सजेशन अगर आखिर में नहीं आप मैं क्या करो, आपसे बात आप करूँ उसको आप उसको कल ग्रुप में डाल दो। नहीं सर अभी बाकी है अभी सिर्फ 3 सेक्टर में हुआ है 50% हो अच्छा नहीं जाएगा कोई तो मैं बात नहीं शेयर ना, कर 3 सेक्टर को अपन चेक कर लेते हैं, है ना, जी क्योंकि ठीक है अभी क्या अभी अपना टॉपिक दूसरा चल रहा है और मेरे को अभी तो नहीं उनके नहीं टॉपिक पे जाना है, नहीं हाँ तो बिल्कुल फिर बिल्कुल सही हाँ तो बराबर, तो आप यस अगर यस उसको क्या करना, जितना हुआ है उतना तो शेयर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, अगर उसमें गलती भी हुई तो भी सब स्टूडेंट ही अपने ही लोग हैं, ओके बराबर ना, सर ओके सर चेक ठीक कर है लूंगा उसको। राइट थैंक यू सर ओके अशोक भाई वेरी गुड, और बढ़िया क्वेश्चन थे आपके। राइट थैंक यू गुड। तो हम लोग थे ट्रेंड में, राइट, हमारी बात मयंक भाई से हो गई। ओके ओके ये यहाँ पे जितने भी लोगों ने काम किया हुआ है सारे लोगों से हमारी चर्चा तो हो गई, राइट। अब और कोई भी लोग जुलाई बैच के जो है और उनको कोई क्वेरी है, यू कैन रेज योर क्वेरी, राइट, सो दैट वी कैन टॉक। पर मेरी गुजारिश है कि वर्क करे जरा, क्योंकि वर्क करे बगैर क्वेरी आएगी वो काम नहीं लगेगी। काम क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि अनुभव नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा तो मैं आपको समझा ही नहीं सकूंगा, है ना। मेरे पास कितनी क्वेरीज आती है पर मैं उनको नहीं समझा सकता हूँ, मुझे पता है कुछ फंडामेंटल्स अभी क्लियर मैंने उनके किए नहीं है, बराबर की नहीं। तो अगर वर्क होगा तो क्वेरीज बढ़िया आएगी, नहीं तो फिर क्वेरी में भी इतना मजा नहीं रहेगा, राइट। ये आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, कोई भी क्वेरी हो यू कैन टॉक ऑन योर क्वेरी। यस प्लीज। जुलाई बैच L&T
L&T के बारे में क्या जानना चाहते हो योगेश भाई? What on L&T? Buying level. कोई बता सकता है मुझे L&T एग्जैक्ट कहां से बाउंस हुआ है, कौन से लेवल से? 61.8%. दिस इज द बेस्ट बाइंग लेवल, राइट? जरूरी नहीं है आए, लेकिन ये लेवल हमेशा ध्यान में रखे। 628 पे लेने का मौका मिलता है, इस मौके को खोएंगे नहीं, बराबर है? एक बढ़िया लेवल है। अभी भी L&T नीचे ही चल रहा है, लेकिन देखो इसमें और अल्ट्राटेक में क्या फर्क है। अल्ट्राटेक सीमेंट की कंपनी है, L&T इंफ्रा में है। ओवरऑल L&T जैसी कंपनियों से तो अल्ट्राटेक के धंधे चलते हैं, लेकिन अल्ट्राटेक का भी धंधा डाउन है, L&T का भी धंधा डाउन है। लॉकडाउन में ये हाईली अफेक्टेड सेक्टर है, पर अल्ट्राटेक का जो रॉ मटेरियल है उसके हिसाब से L&T के प्रॉफिट वैसे नहीं है, राइट? इसीलिए L&T करेक्शन मोड में है, जबकि अल्ट्राटेक यहां चल रही है। नो नीड टू वरी। ये पूरी जो रेंज है ना 800 से 600 के बीच में आप इकट्ठा कर सकते हो। हम 2-3 साल का टारगेट 1600 का रख सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंफ्रा में सबसे अच्छी कंपनी है, राइट? हाँ योगेश भाई, जो आपने लिखा है एक्वायर्ड लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये L&T की नहीं, हर अच्छी कंपनी की निशानी है। ये लोग वो टाइम चल रहा है जब HDFC नहीं चल रही है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस में प्रॉब्लम है, कई कंपनियां बंद हो रही है। तो HDFC खुद ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहा है, वो भी कई छोटी छोटी कंपनियों को लेगा। अल्ट्राटेक बड़ा बन रहा है कई छोटी कंपनियों को लेके, क्योंकि इंफ्रा में प्रॉब्लम तो सीमेंट की कंपनियों को प्रॉब्लम, तो अल्ट्राटेक ने फायदा उठाया। यही फायदा आपका L&T उठा रहा है। प्रॉब्लम का समय है, अच्छा समय नहीं है। कई कंपनियां एक्वायर करके L&T बड़ा बनेगा, नो डाउट अबाउट इट। आने वाला समय इंफ्रा का अगर बढ़िया है, L&T वो कंपनी होगी जो 5 लाख करोड़ के धंधे पे पहुंचेगी। अभी तो ये लोग 1.5 लाख करोड़ ही पहुंचे हैं, बड़ी कंपनी बनेगी अभी तो ये, राइट? कैन इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? So get ready now for next week. Yudhvir ji, please suggest a good company dealing in solar cells. कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी नहीं है अभी युद्धवीर जी, कोई नहीं है, बराबर ना? ऐसा नहीं है कि कोई कंपनियां है जो इसमें अच्छा कर रही है, नहीं, कोई अच्छी चॉइस नहीं है। जो है वो डेप्थ वाली है, राइट? फिर भी इस पे काम करना है तो LTTS ऑलरेडी टेक्नोलॉजी पे काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑटोमेशन पे काम है इनके, राइट? उस पे जा सकते हैं। यस राकेश भाई, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। आपने लिखा 1 क्वेरी, प्लीज। कौन सी क्वेरी है? Good evening, sir. Am I audible? गुड इवनिंग। यस यस, यू आर ऑडिबल। सर मैंने चार्ट्स के वीडियोस देखे और चार्ट्स में स्टडी कर रहा था। तो ओके, जब किसी भी कंपनी की चार्ट्स मैं कैंडल चार्ट्स देख रहा था, तो कैंडल स्टिक्स में डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं, डोजी, हैमर, राइट। इन्वर्टेड हैमर। तो अगर मैं पीरियोडिसिटी अगर मैं ज्यादा रखूं, लाइक मंथ पीरियोडिसिटी या डे वाइज भी देखूं, तो पिक्चर क्लियरर है कंपेयर टू इफ आई
consider very short duration like 5 minutes or 10 minutes. Like for Right. long term perspective, picture is clear, where share is moving, what is the range, and what is the support and resistance. Can study if periodicity is more long term perspective. लेकिन जब इंट्राडे में देख रहे हैं ना, पैटर्न्स ही चेंज हो जा रहे हैं कि 5 मिनट्स में जो मुझे चार्ट दिखा रहा है, कैंडल स्टिक्स दिखा रहा है, वो 30 मिनट्स में डिफरेंट हो रहा है, और 1 आवर्स की ड्यूरेशन देखें तो उसमें फिर इट्स अ डिफरेंट पिक्चर. Right. So I'm not sure, like intraday perspective, it was not helping. Yeah, maybe of course it's just been 2 days for me. It will take time to grasp the knowledge for intraday. But sir, ये जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, वो is it different compared to your other technical course? Because मैं ऐप में भी देख रहा हूँ, there is one more course apart from this 11 weeks training, technical study. So that is like in-depth knowledge for Positional charts. trading वाला कोर्स. Yes sir. नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं समझो. मैं आपको ये कह सकता हूँ, आप वो कोर्स नहीं करोगे, कोई बहुत से कोर्स करने की जरूरत नहीं है. ये जो चार्ट्स में ही आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी, और ये चार्ट करके आप पैसा तगड़ा ही कमाओगे. चाहे आप ट्रेडिंग करो, चाहे आप वेल्थ के लिए यूज करो, लेकिन आपको इंट्राडे में बिल्कुल काम नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा पर्पस ही नहीं है. राइट राइट. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का पर्पस अभी कुछ समय के लिए निकाल दे. एक बार चार्ट में आप माहिर हो जाओगे ना लॉन्ग टर्म में, फिर अपने आप शॉर्टर टर्म में अच्छे काम कर सकोगे. पर जब तक लॉन्ग टर्म में आइडिया क्लियर नहीं होगी ना चार्ट की, तब तक शॉर्ट टर्म में मजा नहीं आएगी. सर क्योंकि मैं 2 दिन से गलती कर रहा था, मेरी अभी थोड़ी हैबिट्स ही हो गई है. मैं ऑयल कमोडिटी पे ट्रेड कर रहा हूँ. सो जब मैंने चैप्टर 8 के वीडियोस कंप्लीट किए, सो आई थॉट मे बी नाउ ऑयल इज गोइंग डाउन, सो आई विल इनिशिएट अ सेल. और उसमें मतलब रेजिस्टेंस के बदले वो सपोर्ट हो गया, एंड इट वेंट टू द अदर डायरेक्शन अपवर्ड्स. राइट. So I knew that I am doing wrong. It's been a day that I have started studying, and I am depending on my one day knowledge and putting money on oil. So obviously that was a big mistake, but then I got to know that intraday is not to start with initially. Maybe long term जब मैंने देखे तो I was more clear, like how it is going, how charts are flowing as per fundamentals also. Because intraday में क्या हो जाता है, कभी कोई immediately news आ गई या डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट आ गया, तो अदर डायरेक्शन में मूव होना चालू हो जाता है. बराबर है. राइट. बिकॉज न्यूज में ना वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर चार्ट्स के कंसेप्ट्स आई डोंट नो वर्कआउट नहीं करते हैं, एंड फंस भी जाता हूँ इंट्राडे में. बराबर है. पर अभी मैं आपको इनफैक्ट अभी नहीं करो ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर कम से कम आने वाले 1-2 साल नहीं करो, क्योंकि अभी समय लगेगा चार्ट में माहिर होने में. कम से कम 1-2 साल लगेंगे इसको प्रॉपर वे में समझने में. मैं चाहूंगा फ्यूचर, ऑप्शन, ट्रेडिंग ये कुछ नहीं करना है, जस्ट लॉन्ग टर्म की चीजें सीखनी है. क्योंकि एक बार सीख लिया ना आपने, फिर तो अपने पास पूरी लाइफ है. 5 years, 10 years, 15 years, फिर हम सब कुछ कर पाएंगे. लेकिन शुरुआत में अगर हमको ट्रेडिंग के वहां पे फंसे तो फिर ये लॉन्ग टर्म भी हम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. राइट. कोई जरूर नहीं पड़ेगी आपको ट्रेडिंग करने की. मेरे हिसाब से प्लीज अवॉइड इट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 or 2 years. बराबर, जब तक कि चित्र एकदम क्लियर नहीं हो जाता है. राइट सर. ओके. क्योंकि नेक्स्ट वीक भी आप कुछ चीजें सीखोगे, वो चीजें भी काम लगेगी, और ये सब चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना है. कई बार आप गलत होंगे तो पता चलेगा क्यों गलत हुए, तो ये लर्निंग में थोड़ा समय जाएगा. बराबर.
मैं ये नहीं कह सकता आपको कि आपने ये यूज कर दिया अब तो आप कमाने ही वाले हो, वो गलत बात हो जाएगी। आपको सब पता चल जाएगा, पर फिर आपको थोड़ा अनुभव भी लेना पड़ेगा, वो एक्सपीरियंस में इतना समय जाएगा, राइट? So kindly Sir, avoid it for few years. और एक डाउट है सर रिगार्डिंग डिफरेंट पैटर्न्स इन कैंडलस्टिक्स. कलर मैटर करता है इफ इट इज हैमर और इन्वर्टेड हैमर, बी इट रेड और ग्रीन, डज इट मैटर? हैमर का कलर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. राइट ना, कोई भी कलर हो. देखिए यहाँ पे आपकी जो हैमर हुई है ये हैमर ही है ना. ये रेड कलर की हुई है, पर रेड हो ब्लू हो कोई मतलब नहीं. मुझे इस कैंडल से क्या समझ में आया पता है राकेश जी? इस कैंडल से, या लाइक देयर आर बायर्स एट द बॉटम एंड इट वेंट अप. करेक्ट. हम ये सोचते थे कि यहाँ से मंदी आ सकती थी, यहाँ से टूट सकता था क्रूड, पर क्रूड आखिर में मंथ के एंड पे कम से कम अगले महीने के लो के ऊपर क्लोज हुआ, यानी कुछ स्ट्रेंथ दिखाई और ये रेड कैंडल नहीं बनी बड़ी, नीचे से बाइंग आया. तो आप मंदी नहीं कर सकते हो. अभी क्रूड ने यहाँ पे कंफ्यूज करके रखा है, तेजी करे कि मंदी करे. मंदी ओपन थी. आप 1 आवर देखेंगे प्लीज, 1 आवर. ओके सर ये जो कल के बिग 2 ग्रीन्स दिख रहे हैं ना सर, मैंने यहाँ पर सेल इनिशिएट किया था. ओके. एंड देन इट बिकेम अ न्यूज दैट वी मे सी अ आउटकम फ्रॉम हाउस ऑफ द स्पीकर रिगार्डिंग सेकंड स्टिमुलस इन यूएस, जिसपे अभी भी डिस्कशन हो रहा है. सो न्यूज ने ना डायरेक्शन चेंज कर दिया. ओके. सो देयर वर मेनी बायर्स. राकेश भाई कि मैंने क्रूड पे कमेंट करना पिछले 15 दिन से बंद किया हुआ है, देखा आपने? यस सर, आई हैव नोटिस्ड इट. हाँ, मैंने क्यों कमेंट करना बंद कर दिया? क्योंकि क्रूड ने लो के ऊपर बंद दे दिया. अभी जो फंडामेंटल हो रहे उसने हमें तो इतना सिखा दिया कि कुछ समय क्रूड डेंजरस हो सकता है, इट कैन मूव बोथ वे. तो नहीं करेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है कुछ समय नहीं करने का, जब तक कि आइडिया क्लियर ना हो जाए. हमें तो ऐसा नहीं है कि नहीं मैं तो क्रूड में हूं तो क्रूड में रोज करूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं. वी शुड डू वेयर वी सी अपॉर्चुनिटी. अब इधर अगर कंफ्यूजन है तो जाने दो, थोड़ा क्लियर हो जाने दो इसको, राइट? नहीं तो फिर ये तो एक घंटे में 15 मिनट में रोज नई स्टोरी बनेगी. अवॉइड इट, राइट सर? ओके सर, थैंक यू. Okay. Yeah. That, oh, sir, I like your simplicity, Aday. Thank you very much. Thank you. Okay, तो मेरी उम्मीद है आप सब लोगों से आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करोगे और कुछ समय ट्रेडिंग को बिल्कुल भूल जाओगे, क्योंकि जब तक वो ट्रेडिंग नाम का विलन रहेगा ना अपने साथ, वो वेल्थ नहीं होने देगा, राइट? कुछ समय काइंडली फोकस ओनली ऑन वेल्थ. ये कहे कि अगर मैं लाख डाल रहा हूं, मुझे हर महीना 5,000 नहीं कमाना है. मैं लाख डाल रहा हूं, मुझे हर साल लाख चाहिए, एवरी ईयर. उसमें थोड़ा समय लगेगा और यही है रियल वेल्थ ऑफ स्टॉक मार्केट, राइट? सो लेट मी क्लोज टुडेज मीटिंग एंड टुडेज मीटिंग. ये वीक और कई चीजें आपको सीखनी है. काइंडली फोकस एंड डू प्रैक्टिस ऑन दिस ऑल थिंग्स एंड प्लीज कंप्लीट द असाइनमेंट. उसके बगैर हम बिल्कुल अधूरे रहेंगे, है ना? सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन. थैंक यू.